Hey everyone, hope you all are doing well. So today we are going to talk about ancient history. We have this new segment of history, and in this we're going to talk about ancient history first. Then after that we're going to talk about medieval history and then modern history. Okay, so let's begin. Uh, so talking about ancient history, first we're going to talk about what are known as the sources of history. Okay, so under sources of history there are two kinds of sources. That is, wait a second. Yeah, there are two kinds of sources. That is archaeological source and literary source. Okay, archaeological sources from the name itself we can get that which is related to archaeological sciences. Okay, and literary sources is related to literature. So the evidences which we get from literature would be defined under literary sources, and the evidences of our history which we get from archaeological or archaeological sciences or archaeology is known as archaeological sources. So archaeological sources are defined under four heads. That is, the first is material remains, second is pottery, third is coins, and fourth is inscriptions. Okay. So talking about material remains, okay, talking about material remains, we can say that material remains are those things which we get from excavation, you can say, or which mean any physical evidence of any human habitation, occupation, any activity, okay, including that location and all. So that all comes under material remains. Okay. Coming to the pottery. Under pottery, we can say that pottery also defines or also tells us about the historical part. Okay. How come? For example, we can say हम कह सकते हैं कि like I can say in Indus Valley civilization, red and black ware pottery was used. Okay, the pottery was of red and black color, you can say, of black ware. It was used, and under Vedic civilization, which comes afterwards, Harappan civilization after Mahajanpadas period. Okay, so in Vedic age, PGW pottery was used. Okay, what is PGW pottery? Wait a second. Yeah. Okay. Huh. So what is PGW pottery? PGW pottery refers to painted grey ware pottery, you can say, or culture, you can say. है So painted grey ware pottery. They were of painted grey color type pottery, which was used in Vedic culture. So from the pottery section, which after looking at them, we can define that it was of which period. Okay, whether it was earlier or whether it came afterwards. Okay, so ऐसे हमको मालूम पड़ता है उसका टाइम पीरियड, उसका कल्चर उस टाइम का पॉटरी के थ्रू. Likewise, हम आगे बढ़ते हैं. Then we come to coins. Okay, so coins also similarly defines our history as well. From the coinage, we can tell that what was the economic condition of that period, how was the trade and all going on at that time. Okay, how come? First of all, I want to tell that the study of coins is known as numismatics. Okay, this is important. मतलब you need to know that the study of coinage is called as numismatics. Okay, so like we can see here. Okay, this coinage, this is a punch marked coin. Okay, the punch marked coin of Mauryan period. Okay, likewise, how we can say how coinage or a coins defines the or tells us about the history is likewise. हम लोग कह सकते हैं कि जैसे गुप्ता पीरियड था, तो गुप्ता पीरियड में लाइक कुशानास जो कि इंडो ग्रीक्स थे, डमास्कस वन डमास्कस टू एंड ऑल, है ना, कुशानास जो कि इंडो ग्रीक्स थे, when they came to India, कुशानास issued first gold coins in India. पहली बार gold coins किसने issue किए थे? कुशानास ने issue किए थे. Okay, and then afterwards in Gupta period, Guptas also issued gold coins. But point to be noted here is that the Guptas issued the largest volume of gold coins. Okay, पहली बार कुशानास ने इशू किए थे गोल्ड कॉइन्स, लेकिन वो जो गोल्ड कॉइन्स थे वो इन जनरल नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं थे या नॉर्मल मार्केट के लिए नहीं थे, वो मार्केट इकोनॉमी में नहीं चल रहे थे, वो बेसिकली लीड्स के बीच में ट्रांसफर हो रहे हैं, ऐसे हो रहा है. ओके, लेकिन जो गुप्तास थे, गुप्तास के टाइम में दैट वाज बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट, दैट वाज रिवॉल्विंग इन द मार्केट. ओके, तो वॉल्यूम सबसे ज्यादा इशू गुप्ताज ने किया है, लेकिन फर्स्ट टाइम अगर किसी जिसने इशू किए हैं
इफ कुशाना इज एन ऑप्शन इन अ क्वेश्चन देन यू विल गो फॉर कुशान, कि कुशाना पीरियड में फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन्स इशू हुए हैं. ओके. लाइकवाइज टॉकिंग अबाउट द इंस्क्रिप्शन, अंडर इंस्क्रिप्शंस आल्सो वी कैन से दैट इंस्क्रिप्शंस हमको बहुत सारी चीजें बताते हैं उस टाइम पीरियड के बारे में, कि क्या चल रहा था उस समय, क्या इकोनॉमी थी, है ना, क्या कल्चर था, हाँ, क्या जो किंगशिप थी वो क्या थी, है ना, व्हाट वाज द रूल ऑफ द किंग उस समय, है ना, व्हाट वाज द टैक्सेशन और एनी अदर थिंग. तो ये सारी चीजें यही इंस्क्रिप्शंस बताते हैं. जैसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, बेसनगर इंस्क्रिप्शन हो गया, प्रयाग प्रशिष्टि हो गया, और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कह सकते हैं उसको, है ना. अशोक के इतने सारे इंस्क्रिप्शंस हैं, हाँ, इतनी सारी स्क्रिप्ट्स हैं जो जो कि मतलब इंस्क्राइब्ड हैं स्क्रिप्ट स्टेप्स की, जिसमें उसके कमांड्स हैं, है ना, लाइक व्हाट ही यूज्ड टू डू, मतलब वो जो है उसको कोई कमांड देना होता था अपनी जनरल पब्लिक को, या कोई बात पहुंचानी होती थी जनरल पब्लिक तक, तो वो क्या करता था, वो एक पिलर में इंस्क्राइब करवा देता था. एंड दैट पिलर वाज केप्ट एट और लोकेटेड एट दैट प्लेस फ्रॉम वेयर पब्लिक वाज, है ना, मूविंग अराउंड इन जनरल. तो वो लोग देखते थे एंड वो लोग कहते थे कि हाँ, व्हाट मेरा किंग क्या कहना चाह रहा है मेरे से, है ना. तो लाइक वाइज दिस थिंग. तो ऐसे इंस्क्रिप्शंस डिफाइन करते हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में, बताते हैं हमको, है ना. इंस्क्रिप्शन एज आई सेड, जैसे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हमारे यहाँ बताया ही मैंने आपको, जूनागढ़ हो गया, मेहरौली हो गया, प्रयाग प्रशस्ति हो गया, है ना, बेसनगर इंस्क्रिप्शन हो गया, अशोकन इंस्क्रिप्शंस हो गए. ठीक है. देन coming to literary sources, as we have talked earlier, that literary sources are the sources which come from any kind of literature, and that literature means that literature that is defined. Okay. ऐसी literature defined, sorry, I'm saying defined literature, ऐसी literature that is that we have deciphered. Okay. So that are literary sources. ठीक है. लिटरेरी सोर्सेज में भी थ्री सब हेडिंग्स में इसको डिवाइडेड है, दैट इज religious literary sources, secular literary sources, and foreign accounts of literary sources. So under religious literary sources we can say that जैसे हमारे जो हमने डिसाइड, जैसे हम बात करें तो इंडस वैली में या हड़प्पन टाइम पीरियड में आप बोल लो, तो यस, हमको स्क्रिप्ट मिली है, हमको लैंग्वेज थी उस टाइम पे, वी नो दैट देयर वाज लैंग्वेज, है ना, बट उसको हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं. तो मतलब उसको डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, उसको जो है हम लोग उधेड़ बुन नहीं कर पाए कि इसका मीनिंग क्या है ना. तो जब तक हमको मीनिंग मालूम नहीं पड़ा, तब तक हमको मालूम ही क्या पड़ेगा कि वो क्या लिखा है, उन्होंने क्या बातें कर रहे हैं, उन्होंने ये सब, मतलब जो उनकी स्क्रिप्ट है वो क्या मीनिंग है उसकी, है ना. तो इसलिए हम उसको लिटरेरी सोर्स में नहीं डालते हैं अभी, बिकॉज वी हैवंट डिसाइफर्ड इट येट, है ना. अब जैसे वेदास हो गए, वैदिक टाइम पीरियड के वेदास हो गए, पुराणास हो गए, ब्राह्मणास हो गए, है ना, शतपथ ब्राह्मण हो गया, और एंड ब्राह्मणास और भी जो है ना, एपिक्स हो गई हमारी हमारी रामायण महाभारत, है ना. देन बुद्धिस्ट कल्चर में आओ तो जो जातका स्टोरीज हो गई जो कि बुद्धा की लाइफ के बारे में बताती हैं, तो दीज ऑल आर लिटरेरी रिलीजियस सोर्सेस, है ना. देन कमिंग टू सेकुलर सोर्सेज वो सारे लिटरेरी सोर्सेज हो गए, जैसे आप जो सेकुलर चीज की बात करें, जैसे हमारे धर्म सूत्रास जो हमारे लिखे गए थे, है ना, तो दे आर सेकुलर लिटरेचर. धर्म सूत्र हो गया, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया, है ना. देन आपका और भी बहुत सारे वो थे, कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, है ना. देन इसकी क्या कहते हैं आपकी कलहना की राज रतनगिरी हो गई, हाँ, राज रतनगिरी आई थिंक कल्हना की हो गई, है ना, जो कि रही राज रतनगिरी आपकी जो कश्मीर के किंग्स थे, है ना. तो उनकी किंग्स के बारे में वो बायोग्राफी थी, कल्हना ने जो लिखी थी, है ना. तो ये सारी हो गई, दीज ऑल आर सेकुलर लिटरेचर हो गई. देन कमिंग टू फॉरेन अकाउंट्स, तो फॉरेन अकाउंट्स वो सारी चीजें हो गई, जैसे हमारे जो जो भी फॉरेन ट्रैवलर्स आए हैं, है ना, जिन्होंने अकाउंट्स दिए हैं, ओके, जिन्होंने अकाउंट्स दिए हैं, और उन्होंने लिखा है, यहाँ पे आए हैं, उन्होंने महसूस किया, उन्होंने जो भी ग्रास्प किया यहाँ से वो उन्होंने अपनी राइटिंग्स में उतारा. एंड वो जैसे तो क्या कहते हो, आप कह सकते हो, ये मेगास्थनीज आया, मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी. देन आपका चाइनीज ट्रैवलर ये फाहिन था, है ना. और ये ह्यून सांग आया था, ह्यून सांग की क्या थी, सी की थी, क्या थी, ऐसे बुक थी, है ना. तो ऐसे ही सब जो भी आया उन्होंने अपने अकाउंट्स दिए हैं, तो उसके थ्रू हमको जो मालूम पड़ता है दैट कम्स अंडर फॉरेन अकाउंट्स. ठीक है. तो ये सब हमको मालूम पड़ गया, हमने ये समझ लिया कि जो ये सोर्सेस क्या होते हैं बेसिकली, है. कैसे हम सोर्सेस बाइफरकेट करेंगे, हमको मालूम क्या पड़ेगा, कैसे पड़ेगा. देन अब क्या समझते हैं, अब हमको कोई भी चीज मिल रही है, उसका हमको अगर आर्कोलॉजिकल सोर्स मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है ना, हम उसको रिलेट कर सकते हैं. हमको उसका लिटरेरी सोर्स मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है. आर्कोलॉजिकल सोर्स नहीं मिला, लिटरेरी सोर्स है उसका, वो भी बहुत अच्छी बात है, वो भी डिफाइन कर रही है हमारी हिस्ट्री के बारे में. हमको दोनों चीजें मिल रही है भैया, आर्कोलॉजिकल सोर्स है एज वेल एज सपोर्टेड बाय लिटरेरी सोर्सेज है, तब तो सोने पे सुहागा है ना. ये तो बेस्ट सिनेरियो है. तो ऐसे ठीक है. चलो, मूविंग फर्दर.
Okay. Moving further, talking about the prehistoric cultures, though, so firstly, we must know that it is divided under three subheadings. That is prehistory, proto-history, and history. Okay. तो प्री हिस्ट्री हम लोग समझ सकते हैं कि प्री हिस्ट्री क्या होती है। प्री हिस्ट्री वो होती है दैट इज फुल्ली बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, कि यहाँ पे जो प्री हिस्ट्री की जितनी भी चीजें होंगी, ठीक है, यहाँ पे बस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ही हैं, बिकॉज यहाँ पे लिटरेचर हम कोई या तो मिली नहीं है, या तो मिली ही नहीं है लिटरेचर यहाँ पे। तो बेसिकली हमको बस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं। ठीक है, कोई चीज जमीन में गड़ी हुई मिली है, कोई पॉटरी मिली है, या हमको कोई चीज कह सकते हो कि जो है कॉइनस तो नहीं होगा, कॉइनस तो नहीं होगा, है ना। देन ऐसे ही मतलब आर्कियोलॉजिकल चीज जो भी मिली है दैट कम्स अंडर प्री हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे देर इज नो लिटरेचर, है ना, देर इज नो लिटरेचर डेवलप्ड हियर, प्री हिस्ट्री। देन कमिंग अबाउट देन टॉकिंग अबाउट प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री वी कैन से वी हम लोग इसको किस में रखेंगे, हम लोग इसको हेड में रखेंगे दैट हेयर अर्ली लैंग्वेज एंड राइटिंग हैज डेवलप्ड। ओके, अर्ली लैंग्वेज एंड राइटिंग हैज डेवलप्ड। तो प्रोटो हिस्ट्री में हम एग्जांपल ले सकते हैं, हम एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल इसमें है आईवीसी, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आईवीसी कैसे, आईवीसी की जो हमको स्क्रिप्ट मिली है, वी हैव गॉट द स्क्रिप्ट बट वी हैवंट डिसाइफर्ड इट येट, हमने बात करी थी पहले ही, है ना। हमको वो पिक्टोग्राफिक आईवीसी की इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन सी स्क्रिप्ट है, इट इज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट रिटन इन बोस्टोफेडोन स्टाइल। ठीक है, बोस्टोफेडोन स्टाइल क्या हो गई, बोस्टोफेडोन मतलब कि जो है जैसे ये लेफ्ट से राइट लिखी गई, देन राइट से लेफ्ट, देन लेफ्ट से राइट, देन राइट से लेफ्ट, देन लेफ्ट से राइट, ऐसे ऐसे लिखी गई है ये, है ना, ये दिस इज बोस्टोफेडोन स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो ऐसे ही हमको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिली है यहाँ पे। ठीक है, आईबीसी से। अब पिक्टोग्राफिक का मतलब क्या है, मतलब दैट इज रिलेटेड टू पिक्चर्स, उसमें पिक्चर्स हैं हमको। तो पिक्चर्स अब जैसे फॉर एग्जांपल अब पिक्चर है लाइक दिस, फॉर वेट अ सेकंड, लेट मी ड्रॉ इट। जैसे पिक्चर है, ये देखिए, अब ये है, और ये, अब दिस कैन बी एनीथिंग यार, दिस कैन बी अ फिश फॉर मी बट दिस कैन बी एनी अदर थिंग फॉर देम, वो उसका कुछ भी मतलब रख सकते होंगे। फॉर एग्जांपल अब ऐसे ही आगे ये बना हुआ है ना, अब दिस कैन बी अ बॉल फॉर मी बट, और जीरो फॉर मी बट अ सन फॉर देम, है ना। तो ऐसे हो सकता है। तो पिक्टो उनकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। ठीक है, तो उसको हम डिसाइफर कर नहीं पाए हैं अभी तक। तो उसमें तो प्रोटो हिस्ट्री में एग्जांपल क्या आप ले लोगे, आईवीसी, है ना, आईवीसी इसके अंडर आ गया, प्रोटो हिस्ट्री हो गई। यहाँ पे अर्ली लैंग्वेज एंड राइटिंग डेवलप हो गई है। और जो हिस्ट्री होती है, ठीक है, जो हिस्ट्री है दैट इज वहां पे जो है लिटरेचर डेवलप हो गई है। यहाँ पे लिटरेचर डेवलप, है ना, यहाँ पे लिटरेचर डेवलप्ड हो गई है। तो वो सारी चीजें जहाँ की जो हमने लिटरेचर डिसाइफर कर ली है दैट ऑल कम्स अंडर द हेड हिस्ट्री। हम लोग कह सकते हैं जैसे वैदिक एज हो गई, वैदिक एज ऑल एंड ऑल कम्स अंडर हिस्ट्री, है ना। प्रोटो हिस्ट्री के अंदर आईवीसी हो गई, और हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया ना, ये चारकोलिथिक एज जितने भी एजेस हैं ये सब। ठीक है, ये सब प्रोटो हिस्ट्री में आ गई। प्री हिस्ट्री तुम्हारी वो हिस्ट्री अपन की हो गई जैसे कि हमारा पेलियोलिथिक एज हो गई, मेसोलिथिक एज हो गई, है ना, जहाँ पे राइटिंग्स कोई डेवलप हुई नहीं है। हम लोग हर्डर्स एंड गैदरर्स थे, हंटर्स एंड गैदरर्स थे, देन हर्डर्स एंड गैदरर्स हुए, है ना, ऐसे। तो ये समझ लिया हमने, ठीक है, कि डिवीजन हमने अब समझ लिया कि किन तीन सबहेड में डिवाइडेड है, तीनों का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो हमको और इजी होगा अब आगे पढ़ने में। चलो ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, वेट सेकंड। हाँ, एक फन फैक्ट बताता हूँ आपको कि ऐसे फन फैक्ट है कि इट ऑलमोस्ट टुक 3 लाख years फॉर मेन टू चेंज फ्रॉम फूड गैदरर्स टू फूड प्रोड्यूसर्स। ओके, एक फन फैक्ट है ऐसे ही है, मेरे को अच्छा लगा, मैंने सोचा बता दूं कि 3 लाख साल लग गए थे हमको फूड गैदरर्स से फूड प्रोड्यूसर्स बनने में, एग्रीकल्चर लाने में। ठीक है ना, चलो ठीक है, लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड, अब एक और बात बता दूं, जैसे ये जो ये था, ये जो प्री हिस्ट्री पीरियड था, है ना, जो प्री हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री इज देन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब पार्ट्स, दैट इज पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। ठीक है, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। जो प्री हिस्ट्री पीरियड है, इसको हम लोग इसको स्टोन एज भी कहते हैं। ठीक है, वाई, बिकॉज हम स्टोन टूल्स यूज करते थे, पीपल यूज टू लिव इन द केव्स, दे यूज स्टोन टूल्स टू हंट, है ना, तो इसलिए इसको स्टोन एज बोला जाता है। चलो ठीक है, अब पढ़ते हैं इसमें कि पेलियोलिथिक, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेलियोलिथिक एज। अब ये देखो, पूरी ये जो आपकी प्री हिस्टोरिक पीरियड है, कहां से कहां तक रहा है, 2 मिलियन से लेके आप समझ लो 2600
BCE तक ये पूरा एज चला है, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट पेलियोलिथिक एज, तो इन पेलियोलिथिक एज वी कैन गेट टू नो दैट, पहली बात तो ये हमको ये याद रखना है ना, कि इसकी टाइम पीरियड एक याद रखो कि 2 मिलियन ईयर से 1200 BC तक पेलियोलिथिक एज चला था, ठीक है। 2 मिलियन ईयर्स, बेसिकली जो आइस एज था, आइस एज इसी पीरियड में था, जो प्लीस्टोसिन एपॉक कहते हैं या प्लीस्टोसिन पीरियड कह लो, ठीक है, या आइस एज कह लो, एनीथिंग, है ना, ये पूरा इसी पीरियड में था, पेलियोलिथिक एज में ही था, ठीक है। प्लीस्टोसिन तो मतलब पूरा अर्थ कवर्ड था आइस एंड पूरे उससे आइस से। वी यूज टू लिव इन केव्स, है ना, वी वर, जो पीपल थे, पीपल वर नोमैडिक, ठीक है ना, क्या लो वो, दे यूज टू, मतलब नोमैडिक क्या, बंजारे नोमैडिक, आज यहाँ है, कल वहां है, कल वहां है ना, ऐसे। तो दे यूज स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग एंड कटिंग, है ना। नो नॉलेज ऑफ कल्टिवेशन, दे वर हैविंग नो नॉलेज ऑफ कल्टिवेशन, है ना, एंड नो नॉलेज ऑफ एनी टाइप ऑफ हाउस बिल्डिंग एंड ऑल, ओके। सो तो जो इसका एंड था, जो ये पेलियोलिथिक एज था, इसका जो एंड था, है ना, दैट इज 12,000 BC के अराउंड। What happened around 12,000 BC? Climate change happened, which led to the development of grasslands, है ना। अब ग्रासलैंड डेवलप हुए, ये देखो, जब सीधी सी बात है, क्लाइमेट वार्मर हुआ, क्लाइमेट वार्म हुआ, तो जो आइस थी वो कम हुई, आइस एज कम, मतलब गई, आइस एज का एंड हुआ, है ना, आइस एज का एंड हुआ तो ग्रासलैंड्स डेवलप हुए, ग्रासलैंड्स डेवलप हुए, देन उससे क्या हुआ, तो जो नंबर ऑफ ग्रासलैंड स्पीशीज थे वो बढ़े, है ना, सीधी सी बात है। ग्रासलैंड जब इंक्रीज हुए वार्मर क्लाइमेट की वजह से, है ना, तो ग्रासलैंड, है ना, ग्रासलैंड स्पीशीज ये भी तो इंक्रीज हुए, सीधी चीज है ना। जैसे गोट हो गया, डियर हो गया, कैटल हो गया, शीप हो गया, एटसेट्रा, जो भी ग्रासलैंड स्पीसीज जितने भी होते हैं, है ना। तो ग्रासलैंड, अब जाहिर सी बात है, फिर ये यहां से फिर क्या होंगे, पहले ये देखो, पेलियोलिथिक एज में जो मेन थे, जो मतलब पीपल थे, वो हंटर्स एंड फूड गैदरर्स थे, हंटिंग करते थे एंड फूड गैदरिंग करते थे, है ना। कि आइस एज बताओ, मतलब आइस एज तो चली रही थी, तो एक हिसाब से खाने वाने का तो कुछ था नहीं, वेजिटेशन तो कुछ होता ही नहीं था, तो इसलिए फूड गैदरिंग भी करते थे, है ना। यहां से जो ये ग्रासलैंड्स डेवलप हुए अराउंड 12,000 BC के अराउंड, जब क्लाइमेट वार्मर हुआ, ग्रासलैंड्स बढ़े तो ग्रास स्पीशीज बढ़े, तो अब ये क्या हो गए, हंटर्स एंड हर्डर्स बने, तब ये मेसोलिथिक एज में ट्रांसफर हुए, है ना। यहां से पिलियोलिथिक से अब ये मेसोलिथिक में ट्रांसफर हुए, मेसोलिथिक एज आई, ठीक है। एक और बात बता दूं, जो ये पिलियोलिथिक एज है, पिलियोलिथिक एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, वेट अ सेकंड, लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड, एक मिनट। देखो, जो ये पिलियोलिथिक एज है, पिलियोलिथिक एज, एक मिनट ऐसा लिख देता हूँ, पिलियोलिथिक एज, पीए लिख दिया है, हाँ। पिलियोलिथिक एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब हेड, ठीक है। क्या है सब हेड आपका, दैट इज लोअर पिलियोलिथिक, मिडिल पिलियोलिथिक एंड अपर पिलियोलिथिक, ठीक है ना। जो ये लोअर पिलियोलिथिक थी, ये आपकी अराउंड समझ लो, मतलब 5 लाख के अराउंड से मान लो, ठीक है, 5 लाख BC से अराउंड 50,000 BC तक थी, ठीक है। देन ये जो मिडिल पेलियोथिक एज थी, ये जो है 50,000 BC से 40,000 BC तक थी, ठीक है। BC आप देख लेना, मैं लिख देता हूँ, 5 लाख से 50,000 BC तक थी। ये कहाँ से कहाँ तक थी, ये 50,000 से थी 40,000 तक, है ना। और जो अपर पेलियोलिथिक एज थी, ये थी आपकी 40,000 से 10,000 तक BC, ठीक है ना। अब जो हम हमारा ट्रांसफॉर्मेशन था, हम जो होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस में ट्रांसफॉर्म हुए हैं, वो हम कहाँ हुए हैं, वो हम अपर पेलियोलिथिक एज में हुए हैं, यहाँ पे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। इट वॉज द अपर पेलियोलिथिक एज दैट विटनेस्ड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, ओके ना, एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द अर्थ। होमो इरेक्टस ट्रांसफॉर्म टू होमो सेपियंस, आर यू गेटिंग मी। चलो ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, हो गया।
चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, मेसोलिथिक में आते हैं। ठीक है, तो मेसोलिथिक क्या था? मेसोलिथिक एज आई सेड, यहाँ से ये लोग ट्रांजिशन हुआ है ना इनका, फूड गैदरर्स से अब हर्डरर्स में आ गए, हंटर्स एंड फूड गैदरर्स से हंटर्स एंड हर्डरर्स। तो मेसोलिथिक वाज अ ट्रांजिशनल फेज, है ना, दिस वाज अ ट्रांजिशनल फेज, मेसोलिथिक फेज। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे अब इन्होंने यहाँ पे बड़े बड़े स्टोन टूल्स थे, देखो एक मैं एक और दिखाता हूँ आपको, ये देखो स्टोन टूल्स दिखाता हूँ मैं लगा के रखा है, ये देखो, पहले ये पेलियोलिथिक में बड़े बड़े स्टोन टूल्स यूज करते थे, ये देखो, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइक्रोलिथ्स डेवलप हुए मेसोलिथिक में, ये देखो ये माइक्रोलिथ है, दीज आर माइक्रोलिथ्स। एक मिनट, अरे यार, ये दिस इज माइक्रोलिथ, ठीक है ना। ये जो है पेलियोलिथिक एज में यूज होते थे, बड़े बड़े टूल्स हैं। माइक्रोलिथ मतलब, माइक्रोलिथ्स मतलब स्मॉल टूल्स, समझ रहे हो ना। तो ये माइक्रोलिथ्स, ये माइक्रोलिथ्स कहाँ डेवलप हुई, ये जो है इसको याद रखना, इसको ये जो है, एक मिनट, ये जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये इन एजेस की। ये माइक्रोलिथ्स कहाँ डेवलप हुए, माइक्रोलिथ्स डेवलप हुए मेसोलिथिक एज में, इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो मेसोलिथिक में आते हैं। तो मेसोलिथिक में क्या हुआ, मेसोलिथिक में आपके माइक्रोलिथ्स डेवलप हुए। ठीक है, देन पीपल लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग एंड ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। यहाँ पे मेसोलिथिक में क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल अब चालू हुआ। ठीक है, यूज ऑफ फायर एंड स्मॉल हट्स, फायर भी डेवलप हुई, फायर का भी इन्होंने इस्तेमाल करना, फायर को भी जलाना सीखा। तो यहीं पे वही मैंने कहा ना कि यहाँ पे इसके पेलियोलिथिक के एंड पीरियड में, जो कि अपर पेलियोलिथिक पीरियड था, उसमें ही हमारा ट्रांजिशन हुआ है किसमें, होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस में। ठीक है, होमो सेपियंस में जब ट्रांसफर हुआ तो मेसोलिथिक एज आ गई, वहां पे हम माइक्रोलिथ्स हमने डेवलप किए, हमको जो है क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेशन आ गया। ठीक है, हमने फायर को डेवलप किया। ठीक है, ये सब मेसोलिथिक के फीचर्स हैं। ठीक है ना, इसके साइट्स हैं कुछ, इसके मेसोलिथिक के इंपॉर्टेंट साइट्स जहां से हमको क्या मिला है, ये देखो इंपॉर्टेंट साइट्स, पहला क्या है, आदमगढ़, कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में। और दूसरा क्या है, बगौर, ये कहाँ पे है, ये राजस्थान में, है ना। ये दो साइट्स हैं, ये दो साइट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। यहाँ से हमको क्या मिला, यहाँ से हमको मिला है अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कहाँ से, आदमगढ़ से एंड बगौर से। ठीक है ना, व्हाट वी हैव गॉट अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है ना, चलो ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नियोलिथिक पे आते हैं, है ना। पेलियोलिथिक से मेसोलिथिक पे आए थे, मेसोलिथिक से नियोलिथिक पे आते हैं, नियोलिथिक इसके बाद का कल्चर है। ठीक है, एज है, इसमें क्या हो गया, मेसोलिथिक यहाँ पे देखो हंटर एंड हर्डरर्स थे, यहाँ पे क्या हो गए, अब यहाँ पे फूड प्रोड्यूसर्स हो गए। फूड प्रोड्यूसर्स मतलब अब हमने यहाँ पे नियोलिथिक एज वाज द एज जहाँ पे हमने एग्रीकल्चर डेवलप किया है। ठीक है ना, हमने एग्रीकल्चर डेवलप किया कहाँ पे, नियोलिथिक में। तो नियोलिथिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यू स्टोन एज, ये पूरा स्टोन एज है, इट इज नोन एज नियोलिथिक, इज नोन एज न्यू स्टोन एज, है ना। यूज ऑफ पॉलिश्ड स्टोन टूल्स चालू हो गए यहाँ पे। ठीक है, कि अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ्स डेवलप हुए थे, न्यूलिथिक में पॉलिश्ड स्टोन टूल्स मिलने लगे हमको। ठीक है, इतना वो लोग अपलिफ्ट हुए थे, इतना जो है एडवांसमेंट आया उनके अंदर। देन इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ यहाँ पे, ऐसा हमने बात करी, अब फूड प्रोड्यूसर्स हो गए हैं। ठीक है, देन जो साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है इसकी न्यूलिथिक की, दैट इज मेहरगढ़। मेहरगढ़ इज इन बलोचिस्तान, पाकिस्तान का पोर्शन। ठीक है, तो दैट इज द ओल्डेस्ट साइट, न्यूलिथिक एज। ठीक है, एंड मेहरगढ़ हैज शोन द एविडेंसेस ऑफ व्हीट, बार्ले, कॉटन। ठीक है, ये सब के एविडेंसेस मिले हमको मेहरगढ़ से। देन देयर इज ऑल्सो एन अनदर साइट दैट इज चौपानी मांडो। चौपानी मांडो से हमको क्या मिला, चौपानी मांडो से वी हैव गॉट द एविडेंसेस ऑफ पॉटरी। ठीक है, पॉटरी, हमने पॉटरी की बात करी थी ना ऊपर, कि जो है सोर्सेज में पॉटरी, हमको पॉटरी से क्या क्या मिलता है, जैसे हमको, हमने कहा था कि जो है आईवीसी कल्चर जो था उसमें हमको रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी मिली है, जो वैदिक कल्चर था उसमें पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी मिली है ना। तो पॉटरी, तो हमको पॉटरी के एविडेंसेस नियोलिथिक से मिल रहे हैं। नियोलिथिक में जगह क्या था, जगह का नाम चौपानी मांडो। चौपानी मांडो से हमको पॉटरी के एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है, तो मतलब क्या था कि देयरफॉर इट ट्रांसफॉर्म्ड हंटर एंड गैदरर सोसाइटी इनटू एन अग्रेरियन कम्युनिटी। ठीक है ना, अब देखो एक बहुत बढ़िया लूप है, मतलब एक साइकिल है, जैसे दिखाते हैं, बहुत इजी समझने को मिलेगा कि हाँ लूप, एक मिनट को नया स्लाइड ले लेते हैं। चलो देखो, ठीक है, अब देखो खुद सोचो कि
एग्रीकल्चरल सोसाइटी हो गई, ठीक है। अब उन्होंने एग्रीकल्चर डेवलप किया, ठीक है, एग्रीकल्चर डेवलप्ड, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलप हुआ तो एक टाइम तक तो वो जो हमारी नीड थी उसने पूरी करी, उसके बाद तो वो बढ़ना चालू हो जाएगा ना, मतलब हमारी नीड हमेशा तो वो रहेगी नहीं, धीमे धीमे कम होती जाएगी। लेकिन एग्रीकल्चर तो ऐसे ही हो रहा है, बल्कि रादर और एडवांस होते जाएंगे, और ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेंगे, है ना। तो एग्रीकल्चर पहले तो अभी किया ही था, शुरुआत हुई, देन वो इंक्रीज हुआ, तो एग्रीकल्चर इंक्रीज। जब एग्रीकल्चर इंक्रीज होगा तो क्या बढ़ेगा, तो सरप्लस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, सरप्लस बनेगा, है ना, एक्स्ट्रा बनेगा। तो जब सरप्लस बनेगा तो सरप्लस हमको भैया हम रखेंगे कहाँ पे, हम ऐसे ही फेंकते रहेंगे उसको। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या डेवलप होगा, उसके लिए उसके लिए पॉटरी डेवलप होगी, है ना। बड़े बड़े पॉटरीज, छोटे पॉटरीज, बड़े पॉटरीज, सामान रखने के लिए। तो जब डेवलप होगी तो पॉटरीज जो है क्या बनाएंगी, जब पॉटरीज डेवलप हो गए, पॉटरीज के थ्रू पॉटरीज ओनर जगह नहीं लगी, उसको रखने के लिए जगह चाहिए, जब अब जाहिर सी बात है जहां पे रखा जाएगा वहां पे लोग भी तो रहेंगे, है ना। तो वो क्या क्रिएट करेंगे, वो परमानेंट सेटलमेंट बनाया, है ना, परमानेंट सेटलमेंट। और जब परमानेंट सेटलमेंट होगा तो क्या होगा, वो जो है लार्ज विलेज फॉर्म कर लेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे भैया। ये देखो, सॉरी यार ये थोड़ा बेकार हो गया एक मिनट ढंग से लिख दूं। वो लोग लार्ज विलेज बनाएंगे, है ना। और लार्ज विलेज जब होगा तो जितना ज्यादा लार्ज विलेज होगा उतना ज्यादा वो एग्रीकल्चर करेगा, और ये एक लूप बन गया है पूरा, सीधी चीज है। उतना ज्यादा एग्रीकल्चर करेगा, फिर जितना ज्यादा एग्रीकल्चर होगा उतना ज्यादा सरप्लस होगा, सरप्लस जितना ज्यादा होगा, फिर से पॉटरी वो लोग और फिर ज्यादा बनाएंगे, जब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उसको और ज्यादा स्टोर करने के लिए पॉटरी बनेगी, पॉटरी बनेगी तो वहां पे परमानेंट सेटलमेंट बढ़ेगा, परमानेंट सेटलमेंट बढ़ेगा तो विलेजेस और लार्ज होते जाएंगे, और ऐसे ही फिर एग्रीकल्चर और बढ़ेगा, ऐसे ही पूरा एक लूप समझ लो बन गया, है ना। समझ में आया ना। तो एक सेकेंड, चलो फिर, ठीक है ना। तो नाउ यू गॉट टू नो हाउ इट ट्रांसफॉर्म्ड हंटर एंड गैदर सोसाइटी इनटू, नाउ इट हैज बिकेम एन अग्रेरियन कम्युनिटी, ठीक है ना। तो ये हो गया। देन क्या कहते हैं, अब ये समझ लो कि जैसे अदर अदर कल्चर्स भी थे उसके बाद, जैसे नियोलिथिक केस के बाद फिर चारकोलिथिक कल्चर आया या कॉपर एज आया। चारकोलिथिक कल्चर बेसिकली ये समझ लो, चारकोलिथिक मतलब कॉपर, चालको, ठीक है ना। तो इट इज द यूज ऑफ मेटल्स बिगैन इसमें, like in Chalcolithic culture, use of metal began towards the end of Neolithic age. Okay, and first metal to be used was copper. Lately, it was mixed by tin, zinc, and lead to make new metal alloy called bronze. ठीक है ना। तो चालकोलिथिक एज हो गई, देन मेगालिथिक कल्चर हो गया, या आयरन एज हो गई, आयरन एज कह लो, मेगालिथिक कल्चर कर लो। मेगालिथिक कल्चर बेसिकली वही हो गया कि आपका जो है जो अपने पेनिनसुलर इंडिया का पेनिनसुलर रीजन है ना। अब जैसे हाँ चलो एक और ये बात कर लेते हैं, जैसे एक रफ डायग्राम बनाते हैं। एक मिनट रुको यार, ढंग से बना लेते हैं। मतलब ऐसे समझ लो यार, अब ज्यादा ढंग का तो बन नहीं रहा है तो बेसिकली ये देख लो कि हड़प्पन कल्चर की बात जब होगी अभी, है ना, तो वो पूरा ये पूरा एरिया होगा वो आगे, ये पूरा समझ रहे हो ना, ये पूरा एरिया हड़प्पन कल्चर की बात करेगा, जिसमें राजस्थान तुम्हारा आ जाएगा, तुम्हारा गुजरात आ जाएगा, ये पूरा एरिया हरियाणा आ जाएगा, है ना। इधर का पंजाब एरिया आ जाएगा, सिंध पोर्शन आ जाएगा, इधर का पाकिस्तान का पूरा, ये सब ये पूरा हड़प्पन एरिया है। और जो मेगालिथिक कल्चर की बात करें हम लोग, मेगालिथिक कल्चर कहाँ है, ये न्यूलिथिक कल्चर के साथ का ये समझ लो, ठीक है। मेगालिथिक कल्चर यहाँ था, साउथ में पेनिनसुलर रीजन में था, ठीक है ना। मेगालिथिक क्या है, मेगालिथिक मतलब एक हिसाब से मेगालिथ समझ लो क्या होता है, मेगालिथ वो होता है एक बरियल समझ लो, होता है बरियल। क्या करते थे लोग लोग जो अपने लव्ड वंस को दफना दिया, उन्होंने दफनाया एंड उसके ऊपर स्टोन हेज बना दिए, मतलब बड़े बड़े स्टोन्स रख दिए, और या कोई पैटर्न बना दिया स्टोन का। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूके में एक द हेज ऑफ स्टोन है, या स्टोन हेज कह लो उसको, है ना, जो बड़े बड़े पत्थर खड़े हुए हैं लाइन से गोल में, यूनाइटेड किंगडम में। तो वो दैट इज ऑल्सो मेगालिथ, ठीक है। तो मेगालिथ कल्चर ये हो गया, ठीक है। चलो ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये मैंने एक ऐसी टाइमलाइन दी हुई है आपको, ठीक है, कि ये समझने के लिए कि न्यूलिथिक के बाद क्या आया।
ठीक है ना। तो बेसिकली यही है, नियोलिथिक के बाद फिर ये ऐसा गया, नियोलिथिक के बाद चालकोलिथिक है, देन प्री हरप्पन्स चालू हुए, है ना। देन प्री हरप्पन्स के बाद फिर अर्ली हरप्पन्स आए, अर्ली हरप्पन्स के बाद देन लेट हरप्पन्स, देन हरप्पन्स गॉट एक्सटिंक्ट एंड देन स्टार्टेड वैदिक कल्चर। ये बीच में यहाँ पे महाजनपदास पीरियड, इस जगह पे महाजनपदा और ये सब पीरियड आएगा। ठीक है, अब ये टाइमलाइन आप लोग याद रखना, अब इसके आगे बात होगी क्योंकि ठीक है कि अर्ली हरप्पन्स कहां से 2800 बीसी से चालू हुए हैं एंड 1500 बीसी तक हरप्पन्स हैव गॉट एक्सटिंक्ट। ठीक है ना, 1500 बीसी तक हरप्पन्स हैव गॉट एक्सटिंक्ट। तो ये टाइमलाइन याद रखना, 2800 बीसी टू 1500 बीसी, क्योंकि ये हमको अभी आगे हेल्प आउट होगी। ओके, चलो मूविंग फर्दर। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज discovered in 1921 by Mr. Alexander Cunningham. Alexander Cunningham, who was Alexander Cunningham? Alexander Cunningham was the first Director General of ASI. Okay, and seals were discovered at Harappa by Mr. Dayaram Sahani and R.D. Banerjee. ठीक है ना। तो on the basis of these findings, Sir John Marshall declared Indus Valley civilization of to the world in 1924. तो सर जॉन मार्शल वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई इन 1924। ठीक है, और उन्होंने डिक्लेयर किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर उन्होंने पूरे दुनिया को बताया था कि यहाँ एक और एक ऐसी सिविलाइजेशन मिली है आफ्टर मेसोपोटामिया एंड जो ये कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन जितनी भी थी, है ना, उनके। नहीं तो पहले तो लोगों को लगता था सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इसको बोलते थे, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन को सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन बोला जाता था पहले। ठीक है, लेकिन उसके बाद ही मालूम पड़ा कि एक और सिविलाइजेशन है, दैट वाज इन इंडिया, दैट इज कॉल्ड एज, जो कि इंडस इंडस के बगल में थी, बसी हुई थी, एंड इट वाज दैट्स व्हाई इट वाज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है ना। तो टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक बार देख लेना आप लोग, बिकॉज दिस इज ऐसे पूछ लिया जाता है, जनरल है ये, कि ईस्टर्न मोस्ट आलमगीरपुर, है ना, मेरठ एमपी में था। वेस्टर्न मोस्ट था सुतका गांव दौर बलूचिस्तान। नॉर्दर्न मोस्ट में मांडा था, जम्मू में जो कि था मांडा, ये है देखो यहाँ पे देख सकते हो मांडा, है ना। एंड सदर्न मोस्ट था दाइमाबाद, जो सदर्न मोस्ट पोर्शन था, है ना, सदर्न मोस्ट इंडस वैली का एक्सटेंट था, दैट वाज दाइमाबाद, महाराष्ट्र में था ये। ठीक है, चलो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन जो कि नीचे लिखा हुआ, जो कि थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। अब देखो एक बहुत वैसी बात है कि जितनी भी ये सब सिविलाइजेशन थी, एंशिएंट सिविलाइजेशन, सब नदी के किनारे बसती थी, बिकॉज वहां से उनको रिसोर्सेज मिलते थे। नदी से क्या होता था, नदी से सिल्ट आता था, है ना, और उसका फिर वो जो लैंड था, लैंड को जो है वो एग्रीकल्चरल बना देता था, उसके वहां पे एग्रीकल्चर होता था, एग्रीकल्चर से ट्रेड बढ़ता था, इकोनॉमी बढ़ती थी, है ना। तो जितनी भी ये सब सिविलाइजेशन थी, सब कोई ना कोई नदी के किनारे थी। जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन इंडस के किनारे थी, है ना, वैसे इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल के किनारे थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर के जो है किनारे बसी हुई थी पूरी, है ना। तो ये मेसोपोटामियन आपका ये हो गया, आपका ये ईरान पोर्शन हो गया, है ना, ईरान पोर्शन और ये सब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन था। ठीक है, इजिप्ट इजिप्ट तो आप जानते ही हो, पूरा नाइल के किनारे। ठीक है ना, चलो देन वेट सेकेंड। हाँ, तो इनकी साइट्स भी हैं कुछ। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया, वेट सेकेंड, लेट मी चेक, मैं कुछ भूल तो नहीं रहा। हाँ, चलो ठीक है। अब जैसे भीमबेटका, जैसे हमको हमको ओल्डेस्ट क्या मिला पेंटिंग्स एंड ऑल में, हमको क्या मिला। अब जैसे इसके पहले जब तक ये डिस्कवरी नहीं थी, तब तक हमको ये मालूम था, ठीक है, कि जैसे ओल्डेस्ट पेंटिंग जो भीमबेटका की केव्स आप मान लो, भीमबेटका कहाँ है, भीमबेटका इज इन एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो भीमबेटका में जो हमको पेंटिंग्स मिली हैं, ठीक है, दैट हैज बिकम द ओल्डेस्ट। उसके पहले क्या था, उसके पहले जो है एक जगह है, दैट इज इन स्पेन। ठीक है, तो द केव ऑफ अल्टमीरा, द केव ऑफ, लेट मी राइट इट, केव ऑफ अल्टमीरा, स्पेन, है ना। तो यहां से हमको जो है एक डिस्कवरी हुई थी, एक हमने डिस्कवरी की थी केव पेंटिंग, केव में, दैट वाज ऑफ अ रेड एंड ब्लैक बुल विद बिग हॉर्न्स। मतलब बहुत ऐसी पेंटिंग है, आई विल शो यू द पेंटिंग, वेट सेकंड। केव ऑफ अल्टमीरा पेंटिंग, ये देखो ये पेंटिंग हमने डिस्कवर किया था। इसके पहले यही ओल्डेस्ट पेंटिंग थी जो हमको मिली थी। ठीक है, बट आफ्टर द डिस्कवरी, उसके बाद जब ये विष्णु एस वकानकर, प्रोफेसर विष्णु एस वकानकर, उन्होंने डिस्कवरी की थी भीमबेटका पेंटिंग्स की। ठीक है, तो ये देखिए, ये है, ये सारी भीमबेटका पेंटिंग्स हैं जो हमको मिली है।
भीमबेटका के केव्स में ये जो पेंटिंग है, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बहुत सारे केव्स हैं, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हमको भीमबेटका मिली और उसके बाद मालूम पड़ा कि दीज आर मच ओल्डर देन द केव पेंटिंग ऑफ अल्टामीरा इन स्पेन। ठीक है ना, तो ये चीज ठीक है। देन चलो मूविंग फर्दर, हम लोग बात करते हैं अब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में फिर से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द वेस्टर्न स्कॉलर वी कैन से दैट द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एन ऑफशूट ऑफ मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन, है ना। कहते तो ये ऑफशूट है, ये इन्हीं से निकल के आया है। because because why, because of big monuments like ziggurat's of Mesopotamia and pyramids of Egypt। जैसे इजिप्ट में हमको पिरामिड्स मिलते हैं, है ना। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हमको जिगुआर्ट्स मिलते थे। जिगुआर्ट्स मतलब उनका टेंपल होता था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जिगुआर्ट को लोग टेंपल मानते थे। मैं पिक्चर है मेरे पास, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। जिगुआर्ट जिगुआर्ट, ये देखो इसमें, ठीक है ना। दिस इज जिगुआर्ट, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का है ये जिगुआर्ट। ठीक है, तो दिस वाज जिगुआर्ट। तो ये मेसोपोटामिया मिला था। मैंने उसकी पिरामिड की पिक्चर नहीं लगाई, पिरामिड तो सबने देखा ही होगा। ठीक है, इजिप्शियन में हमको पिरामिड्स मिले हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हमको जो है ये स्ट्रक्चर मिला है। ये है, दिस इज कॉल्ड सिटाडेल। ये बेसिकली टाउन है पूरा। ठीक है, तो ऐसे टाउन्स थे। अब सिटाडेल, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं, एक मिनट। ठीक है, तो क्योंकि जो है बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स वहां भी थे और यहाँ भी हमको ये सिटाडेल मिला, तो जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, वेस्टर्न स्कॉलर्स ने कहा कि भैया ये जो है एक ऑफशूट हो सकता है इजिप्शियन सिविलाइजेशन का, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। ओके, बट जो मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं, मॉडर्न हिस्टोरियंस रिजेक्ट दिस थ्योरी एंड क्लेम दैट द प्रोसेस ऑफ द इमर्जेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज very much gradual and evolutionary. Okay, hence we can say that Harappans were the local people who emerged out of the Neolithic and Chalcolithic cultures। जो एक cultures थे, हमने बात करी पहले ऊपर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया जो हरप्पन्स थे, दे वर द लोकल पीपल जो कि इन्हीं कल्चर से इवॉल्व होके निकले। ठीक है ना। The origin of Harappan civilization was gradual and it also survived for more than 700 years in India. Okay, due to a perfect balance between the connections of the Harappan towns with villages, with other towns, and with cities of contemporary civilization as well। समझ रहे हो ना, कि उनके भैया अच्छा खासा कल्चर था उनका, वो इसीलिए डेवलप किए क्योंकि एक परफेक्ट बैलेंस था उनके पास, अपने लोकल टाउन्स को कनेक्ट करने का, कनेक्ट होने का, अपने ट्रेड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का, है ना। बल्कि रादर लोकल तो हटा दो, आप जो है वो अलग अलग, जो अलग कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी उनके साथ भी वो लोग ट्रेड कर रहे थे। ठीक है ना, कैसे ट्रेड कर रहे थे हमको ये मालूम कैसे पड़ता है, हमको ये मालूम ऐसे पड़ता है कि हमको एक इंस्क्रिप्शन मिला। इंस्क्रिप्शन मिला कैसे, लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड फर्स्ट। हाँ, देखो, हमको इंस्क्रिप्शन मिला, हमको एक इंस्क्रिप्शन मिला। किसका इंस्क्रिप्शन मिला, हमको इंस्क्रिप्शन मिला किंग सारगों का। कहाँ के सिंह किंग थे, किंग ऑफ अक्कड़, किंग ऑफ अक्कड़ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वही में, है ना। किंग सारगों का, किंग सारगों, टाइम पीरियड लिख देता हूं मैं, 2350 बीसी के अराउंड है। तो किंग सारगों का जो इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, किंग सारगों ऑफ अक्कड़, इनके इंस्क्रिप्शन में जो है इट मेंशंस दैट द शिप्स ऑफ दिलमुन, मंगान एंड मेलुहा यूज्ड टू डॉक एट द पोर्ट्स ऑफ मेसोपोटामिया। कौन, कहां कहां के शिप्स, दिलमुन, मगान एंड, वेट सेकेंड, मेलुहा। समझ रहे हो, दिलमुन, मगान एंड मेलुहा, यहाँ के शिप्स जो है मेसोपोटामिया के डॉकयार्ड्स में डॉक होते थे। ठीक है, जो दिलमुन था, दिलमुन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज बहरेन, जो बहरेन है, दैट इज वाज द दिलमुन। दिलमुन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज बहरेन, मगान हैज बीन आइडेंटिफाइड एज मकरान कोस्ट। ओके, and Meluha has been identified as the Indus or RASH,
सौराष्ट्र रीजन, सौराष्ट्र रीजन वही गुजरात साइड का है ना, इंडस और सौराष्ट्र रीजन। दिलमुन मगान एंड मेलुहा यहाँ के जो है हमको इंस्क्रिप्शन मिला किंग सारगांव का, जो कि अक्कड़ के थे, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। उनके इंस्क्रिप्शन में क्या बयां कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि दिलमुन, मगान और मेलुहा, इन तीन जगह के शिप्स आते थे हमारे जो है बंदरगाह में, डॉक होते थे, है ना, वहां से सामान आता था, ट्रेड आता था। और दिलमुन को हमने आइडेंटिफाई किया है बहरेन, दिलमुन वाज बहरेन, मगान वाज माकरन कोस्ट, और मेलुहा जो जगह थी दैट वाज द इंडस और द सौराष्ट्र रीजन। इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि इनके ट्रेड्स थे, ठीक है। बल्कि रादर ये जो मेलुहा वाला मेलुहा का इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, आफ्टर द डिक्लाइन, आफ्टर द एक्सटेंट ऑफ द एक्सटिंक्शन ऑफ द इंडस वैली पीपल और द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हमको इसके बारे में इंस्क्रिप्शन फिर मिलना बंद हो गए। हमको मेलुहा के बारे में, हमको मगान और दिलमुन के बारे में मिलते थे, लेकिन मेलुहा के बारे में इंस्क्रिप्शन मिलना, फिर इंस्क्रिप्शन में बात होना बंद हो गई थी। ये हमको बाद में मालूम पड़ा, ठीक है। चलो, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन के, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो आईवीसी वाज, आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बनाइज्ड सोसाइटी, ठीक है, इट वाज द फर्स्ट अर्बनाइज्ड सोसाइटी, as because majority of the Harappans or the Harappan people were engaged in the non-agricultural activities such as manufacturing and import and export. Okay, so it was the first urbanized society. The urban layout was mainly classified into parts, that is citadel and lower town, ठीक है ना। जो ये अर्बन लेआउट था दैट वाज कंप्राइज्ड इनटू टू पार्ट्स, मतलब सिट्राडेल एक हिसाब से ये समझ लो ना, एक एक ये सिट्राडेल एक पोर्शन था, ये लोअर टाउन है इसके इर्द गिर्द, और एक बड़ा सा पोर्शन है दैट वाज कॉल्ड द सिट्राडेल। जैसे देखो फोटो में देखा था ना, फोटो है हमारे पास, एक मिनट आई शो यू द पिक्चर, ये देखो ये पोर्शन। नाउ इस पोर्शन में क्या है, इस पोर्शन में दिस इज द सिट्राडेल, दिस इज द सिट्राडेल पोर्शन, है ना। और ये जो है लोअर टाउन है पूरा, ये दिस इज द लोअर टाउन, ये सिट्राडेल है, ठीक है ना। तो इससे हमको मालूम पड़ता है इनका अर्बन लेआउट मालूम पड़ता है इससे हमको, ठीक है। दैट वाज सिट्राडेल एंड लोअर टाउन, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइडेड था टाउन। हालांकि एक इसका एक्सेप्शन है, एक इसका एक्सेप्शन है, सॉरी एक्सेप्शन, एक इसका एक्सेप्शन है, वो क्या है, कहाँ गया, एक इसका एक्सेप्शन है दैट इज धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा में हमको क्या मिला है, हमको एक मिडिल टाउन भी मिला है, विच मेक्स इट एन एक्सप्रेसिव एग्जांपल ऑफ द थ्री लेयर्ड अर्बन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। धौलावीरा, धौलावीरा कहाँ है, एक मिनट दिखाते हैं हम, हाँ, ये देखो कच्छ, गुजरात, धौलावीरा, ठीक है ना। चलो, ठीक है। देन हरप्पन्स फॉलोड ग्रिड पैटर्न ऑफ टाउन प्लानिंग, ठीक है ना, अंडर विच देयर मेन स्ट्रीट यूज टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल। उनके पास ग्रिड पैटर्न था, ग्रिड पैटर्न मतलब वो क्या करते थे, ऐसे रोड्स उनकी ऐसे ऐसे होती थी, ये यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, यहाँ घर है, ये ऐसे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, और रोड्स ऐसे हैं इनकी, ठीक है। तो दे फॉलोड ग्रिड पैटर्न ऑफ टाउन प्लानिंग अंडर विच देयर मेन स्ट्रीट यूज टू इंटरसेक्ट विद ईच अदर एट 90 डिग्रीज। दे वर हैविंग अ हाई सेंस ऑफ हाइजीन एंड क्लीनलीनेस बिकॉज ऑफ वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम। उनका ड्रेनेज सिस्टम भी वेल प्लान्ड था, ठीक है। क्या कहते हैं उनकी जो ड्रेनेज थी, जो वो सब उस पे जो है ड्रेन स्लैब्स लगे हुए थे, जो उनके जो पिट्स थी, पिट्स पे जो है पिट स्टोन जो है रखे रहते थे, है ना, उनकी जो नालियां थी उसके ऊपर स्लैब्स रखे रहते थे। तो काफी एडवांस ड्रेनेज था उनका, ओके, एंड काफी हाइजीनिक था, क्लीन्ड। हरप्पन्स यूज्ड बर्न्ड ब्रिक्स एज कंपेयर टू मड ब्रिक्स। मड ब्रिक्स मतलब जैसे जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी वहां पे मड ब्रिक्स यूज होते थे, जैसे इजिप्ट था, इजिप्ट में वो लोग मड ब्रिक्स यूज करते थे, दे weren't using burned bricks, ठीक है ना। बट इन हरप्पन सिविलाइजेशन बर्न्ड ब्रिक्स वर यूज्ड। सो ये बता सकता है कि हम लोग कि उस टाइम की सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन कितनी एडवांस थी कि दे वर यूजिंग द बर्न्ड ब्रिक्स। रादर जो उनके जो आपके ये ड्रेनेज थे, ड्रेनेज में दे स्पेशली इन ड्रेनेजेस दे यूज्ड बर्न्ड ब्रिक्स, ठीक है ना। नाउ
सम हाउसेज वर डबल स्टोरी टू, ओके। हाँ, बहुत सारे ऐसे हमको एविडेंसेस मिले हैं कि सिंगल स्टोरी हाउसेस थे, लेकिन कुछ एविडेंसेस ऐसे भी हैं जहां से हमको ये भी मालूम पड़ता है कि जो हाउसेस थे दे वर डबल स्टोरी, दो दो माले के घर थे वहां पे भी, ठीक है ना। नो विंडोज ऑन ऑन along the main road, main entrance does not give direct view of the interior of the house or courtyard। मतलब क्या है इसका मतलब, क्या है कि जो, अब फॉर एग्जांपल ये देखो, ये घर है, यही घर समझ लो, ये एक घर है, ठीक है ना। अब ये मेन रोड जा रही है, तो इनके जो एंट्रेंसेस थे यहाँ पे कोई खिड़कियां नहीं होती, तो हम आज क्या कर रहे हैं, आज हमारे में क्या रहता है, हमारे में रहता है कि सामने की तरफ खिड़कियां होती हैं, है ना। बट बड़े बड़े गेट होते हैं, खिड़कियां होती हैं, तो ऐसा नहीं था सीन इनके साथ। इनके यहाँ सामने की तरफ मेन रोड की तरफ खिड़की नहीं होती थी। व्हाट वाज दिस गिविंग, दिस वाज गिविंग एन अटर सेंस ऑफ प्राइवेसी, ठीक है ना। एक प्राइवेसी तो थी, एक प्राइवेसी को प्रायोरिटी थी उस समय पे, ठीक है। तो एंड कि बाहर कोई भी आ रहा है वो घर के अंदर ना देख पाए, या घर के अंदर नहीं देख सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं विंडोज नहीं होती थी, विंडोज दूसरी साइड को होती थी, लेकिन मेन रोड की तरफ नहीं होती थी, ठीक है ना। चलो, अब जैसे ये देखो, एक और चीज बताऊं आपको कि आज का जैसे ये हरप्पन फॉलोड ग्रिड पैटर्न और टाउन प्लानिंग एंड दिस, आज के टाइम पे है क्या कुछ ऐसा कि कहीं कोई सिटी हो, इंडिया में कोई सिटी हो जो कि, या कुछ, या कोई शहर हो जो ग्रिड प्लान मतलब टाउन प्लानिंग बेस्ड हो जिसपे, चलो मतलब मालूम है, बढ़िया है, बात है, नहीं मालूम तो चलो बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम पे एग्जांपल जैसे कि है, फर्स्ट तो ले लो चंडीगढ़, दैट इज अ प्लान्ड सिटी, है ना। अरे यार, जी यार, ठीक है, चंडीगढ़। एक और क्या है, वन इज न्यू जयपुर, है ना। दीज टू सिटीज आर द प्लान्ड सिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है ना, विच हैव बीन डिजाइन्ड ऑन द ग्रिड पैटर्न ऑफ टाउन प्लानिंग, ठीक है। चलो तो नाउ, चलो एक और पॉइंट है इसमें कि all prominent monuments of Harappan civilization, especially Mohenjo-daro, okay, that may have been the capital of Harappa, were having the monuments like Great Bath हो गया, Great Granary हो गई, Hall of Assembly हो गया, etc, है ना। When these all things were located inside the citadel, ठीक है। जैसे ग्रेट बाथ एंड ग्रेट ग्रैंडरी, क्या है ये है ये, देखिए, ये देखो आ गया, दिस इज द ग्रेट बाथ, ये जो पोर्शन है, ये ग्रेट बात का पोर्शन है, ग्रेट बात हो गया, द ग्रेट बात, ये द ग्रेट ग्रैंडरी है, ये तो एक 3D भी मैंने डाला था ऐसे ही, कि ऐसा दिखता होगा, ऐसा लगता होगा, दिस वाज दिस थिंग, इसी के अंदर स्टोरेज था, जो एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट ऑफ फूड था, जो कि हमने बात करी ना, जो सरप्लस था वो यहाँ स्टोर होता था ग्रेट ग्रैंडरी में, नाम से मालूम पड़ा ग्रैंडरी, ठीक है ना। चलो, ठीक है, मूविंग फर्दर। चलो, टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने एक यहाँ पे, ये देखो, एक इमेज लगाई हुई है वैसे तो मैंने, ठीक है, इसमें और मैंने इंपॉर्टेंट सिटीज वैसे भी डाल दी हैं, ये स्लाइड में डाली हुआ है, लेकिन आप इसको इमेज भी एक बार देख सकते हो, इमेज का एक बार आप बस साइड, इसमें साइड देखना और मेजर फाइंडिंग्स नजर मार लेनी है, ठीक है। इट वुड बी वेरी मच बेनिफिशियल। बाकी तो मैंने मेन में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्राहो, है ना, इन सब के बारे में बात करी है, जैसे कोट दीजिए, ये सब देख सकते हो। जो बात नहीं करी है मैंने, रोपर, रोपर हो गया इंपॉर्टेंट, आलमगीरपुर, है ना, सुरखतोड़ा, ये सब के बारे में देख लो, है ना, बालागीर, ये सब तो नहीं, ये सब देख लेना वैसे। चलो बात करते हैं अब आगे, इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंपॉर्टेंट सिटीज में हड़प्पा हो गई, है ना, लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आता है, पूछा जाता है ऐसे एग्जाम्स में, है ना, ऑन विच बैंक इज हड़प्पा, या कोई सिविलाइजेशन लोकेटेड, तो हड़प्पा वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी, ठीक है। एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय इन 1921 बाय चार्ल्स मेसन, है ना, बाय चार्ल्स मेसन। द फर्स्ट आर्टिफैक्ट अनकवर्ड इन हड़प्पा, पूछा जाता है ना, तो फर्स्ट आर्टिफैक्ट अनकवर्ड इन हड़प्पा वाज अ सिंगल हॉर्न्ड यूनिकॉर्न सील, सिंगल हॉर्न्ड यूनिकॉर्न सील वाज द फर्स्ट आर्टिफैक्ट डिस्कवर्ड। लेट मी शो यू द पिक्चर, ये रही, ये देखो, सिंगल हॉर्न्ड यूनिकॉर्न सील, एनिमल है, उसका एक सिंगल हॉर्न है, सिंगल हॉर्न जा रहा है, दिस वाज द सील, सिंगल हॉर्न्ड यूनिकॉर्न सील, ठीक है। चलो, मूविंग फर्दर, टॉकिंग अबाउट मोहनजोदारो। मोहनजोदारो मींस द माउंट ऑफ डेड, सिंपल सी बात है, मोहनजोदारो मींस द माउंट ऑफ डेड, माउंट ऑफ डेड मतलब पहाड़, मरे वो का पहाड़। तो यहाँ से हमको कई सारे रिमेन्स ऐसे मिले हैं, हमको कई सारे स्केल्टन्स मिले हैं, कई सारे
माउंटेड एक के ऊपर एक ऐसे स्केल्टन्स मिले हैं। और तो इसीलिए इसको बोला गया माउंट ऑफ डेड, मोहनजोदारो। ठीक है। तो द ग्रेट बाथ, हमने बात करी थी ना अभी, द ग्रेट बाथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस। ओके। आर्टिफैक्ट्स फाउंड आर मदर गॉडेस आइडल, डांसिंग गर्ल स्टैचू, प्रीस्ट किंग, ये सब मतलब जो मैंने इसमें लिखे हुए हैं ये सब तो देख ही लेना, याद ही होने चाहिए, बिकॉज ये पूछे जाते हैं, एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। ठीक है ना, बहुत ऐसे ही। तो आर्टिफैक्ट्स फाउंड एट मोहनजोदारो आर गॉडेस आइडल फाउंड हुआ है, डांसिंग गर्ल स्टैचू, प्रीस्ट किंग, पशुपति सील, ये सब की फोटो है, मैं दिखाता हूँ, बिकॉज एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी जब बनती है तो याद रहता है वो। मोहनजोदारो का क्या मिला, ये देखो, मदर गॉडेस स्टैचू, ये मदर गॉडेस स्टैचू है ना। देन ये डांसिंग गर्ल स्टैचू है, देखो कितना ऑर्नामेंटेड है, देखो बैंगल्स अंकल कहाँ तक पहने ऑर्नामेंटेड है, ये भी देखो कितना ऑर्नामेंटेड है। डांसिंग गर्ल स्टैचू हो गया। बियर्डेड प्रीस्ट किंग हो गया, ये देखो, है ना, बियर्डेड प्रीस्ट किंग, ही वाज अ प्रीस्ट किंग, ऐसा मिला है हमको कि भैया ये सिटाडेल में होगा, यही राजा। एक हिसाब से बोला जाए तो बियर्डेड प्रीस्ट किंग का जो स्टैचू मिला है, यही से हमको मालूम पड़ता है कि उस समय जो वो रही होगी, मतलब हमको ये मालूम पड़ता है ना, हमको कोई वेपनरी के एविडेंसेस नहीं मिले हैं हड़प्पा से। और हमको जो है, जो उस टाइम पे इकोनॉमी कैसे वर्क करती थी, जो उस टाइम पे कंट्रोल किसके पास था, ये सब चीजें हमको मालूम नहीं पड़ती हैं। तो द बियर्डेड, हम यही मान रहे हैं कि जो बियर्डेड प्रीस्ट है, इसका जो हमको, तो यही एक हिसाब से जो इकोनॉमिक कंट्रोलिंग थी, जो सिट्राडेल में जो मेन पर्सन था, ही वाज वो बियर्डेड प्रीस्ट हुआ करता था, नहीं उसी का स्टैचू है, तो जो कि सब कुछ गवर्न कर रहा था। ठीक है। तो द बियर्डेड प्रीस्ट किंग इसीलिए बोलते हैं द बियर्डेड प्रीस्ट किंग। ठीक है। ये पशुपति सील, ये देखो पशुपति हो गई, ये देखो शिवा बैठे हैं, है ना, पशुपति बैठे हैं, शिवा इन योगिक पोस्चर, ये देख रहे हो बैठे हैं, ये पैर गए हैं, ये पैर हैं, योगिक पोस्चर में बैठे हैं, बहुत डिफिकल्ट स्टाइल है ना। पीछे देखो 4 एनिमल्स हैं, जैसे ये देखो, राइनो हो गया आपका, है ना, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, है ना, और एक एनिमल है। तो ये सब एनिमल्स हैं पशुपति सील में, है ना। तो ये सब चीज़ें हमको डिस्कवरी हुई हैं कहाँ से, मोहनजोदारो से हुई हैं। एक और चीज़ बता दूं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें कहीं भी काऊ की बात नहीं हुई है, कहीं भी काऊ के बारे में मेंशन नहीं है, या है ना, सील से हमको मालूम नहीं पड़ा है कि काऊ, काऊ के बारे में बात कहीं भी नहीं होती। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से एनिमल के बारे में बात नहीं करता है, तो दैट इज काऊ हो गया। हॉर्स हो गया, हॉर्स के बारे में बात नहीं करता है। ठीक है ना, इंटरसेशन कहीं भी हॉर्स के बारे में हमको मालूम नहीं पड़ रहा है किसी भी सील से या किसी भी तरीके से। ठीक है। देन एक और चीज बता दूं कि जो सिल्वर है, जो हड़प्पन्स थे, दे वर नोन टू सिल्वर। ओके। तो उनको सिल्वर के बारे में मालूम था। एंड चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, टॉकिंग अबाउट चंदुराहो। ठीक है। तो चंदुराहो, चंदुराहो इज नोन एज द लैंकाशायर ऑफ इंडिया। लैंकाशायर ऑफ इंडिया मतलब लैंकाशायर एक जगह है यूके में। ठीक है। दैट इज द इंडस्ट्रियल कैपिटल बेसिकली कह लो। ठीक है ना, बहुत इंडस्ट्रियल। तो चंदुराहो वाज नोन एज द लैंकाशायर ऑफ इंडिया। व्हाई? बिकॉज दिस प्लेस हैज बीन द इंडस्ट्रियल हब फॉर शेल मेकिंग, बैंगल मेकिंग, बीड मेकिंग, है ना। ये पूरा इंडस्ट्रियल हब रहा है बेसिकली। चंद्राहू का आप इंडस्ट्रियल हब के नाम से जान लो बस इसको। ठीक है। चंद्राहू, व्हाट वाज चंद्राहू? इट वाज एन इंडस्ट्रियल हब, हब ऑफ हड़प्पन टाइम। ठीक है। दिस वाज द ओनली प्लेस विदाउट सिट्राडेल। यहाँ पे बस एक ये जगह है हमको जहाँ हमको सिट्राडेल नहीं मिला है, बाकी हर जगह हमको सिट्राडेल एक हिसाब से मिला है। ठीक है। ओनली, तो इससे हमको ये मालूम पड़ता है दैट इट वाज एन इंडस्ट्रियल प्लेस। यहाँ पे सब लोग बस काम करने आते थे, काम कर रहे हैं जा रहे हैं वापस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल कैपिटल था बेसिकली ये। ठीक है। चलो मूविंग फर्दर, टॉकिंग अबाउट कलीबंगन। कलीबंगन लिटरली मीनिंग मीन्स कलीबंगन, ब्लैक बैंगल। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है ये चीज। इट इज लोकेटेड कलीबंगन, लोकेटेड एट हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, लोकेटेड एट हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। राजस्थान में लोकेटेड है कालीबंगन। ठीक है। और यहां से हमको क्या मिला है, यहां से हमको प्लॉट फील्ड मिली है। प्लॉट फील्ड मतलब खेती की हुई जमीन यहां से मिली हमको, इसके एविडेंस मिले हमको। तो दिस इज कालीबंगन इज एन इंपॉर्टेंट साइट। ये पूछा जाता है फ्रॉम वेयर वी हैव गॉट प्लॉट फील्ड सर्फेस। ठीक है। तो दैट इज कालीबंगन। ठीक है। तो प्लॉट फील्ड सर्फेस हैज बीन फाउंड हेयर। मेसोपोटामियन सील्स also found here. Wheels of toy cart, fire altars etc are found here. ठीक है। व्हील्स ऑफ टॉय कार्ट मतलब ये टेराकोटा की रही होगी, है ना। चलो ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट लोथल। लोथल एज आई, एक मिनट को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रहा कालीबंगन। ठीक है ना, ये रहा कालीबंगन और ये रहा लोथल।
लोथल ये गुजरात है. लोथल was, this is Kalibangan was located in Hanumangarh district of राजस्थान. ठीक है. लोथल was in गुजरात. लोथल was a डॉकयार्ड. ठीक है. ये डॉकयार्ड था, बंदरगाह. Lothal, situated in Gujarat, it served as a main seaport for the Indus Valley people. Lothal was a dockyard with baked bricks and lime plaster used in it. देख रहे हो? It was also known as the Manchester of Harappan civilization for its cotton trade. मैनचेस्टर क्या है? यूके में ये भी एक जगह है, इंग्लैंड में. यहाँ से क्या होता है? कॉटन ट्रेड होती है यहाँ पे बहुत. कॉटन ट्रेड यहाँ से बहुत होती है. तो इसीलिए लोथल को क्या बुलाते थे? लोथल को जो है कॉटन कैपिटल भी बुलाते थे ऑफ इंडिया का, या मैनचेस्टर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन बुलाते थे. ठीक है ना. देन टॉकिंग अबाउट द बनावली. बनावली इज द ओनली हरप्पन साइट विद एन ओवल शेप्ड सेटलमेंट. ओवल शेप्ड सेटलमेंट मतलब ऐसा सेटलमेंट था इनका. इनका सेटलमेंट ये ऐसे शेप में था, ये ऐसे. ठीक है ना. विद ओवल शेप्ड सेटलमेंट एंड लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था. पिट्स यहाँ पे यूज होती थी. मतलब पिट्स हैं, उसमें भर रहे हैं, उसके ऊपर से उसको कवर कर रहे हैं मिट्टी से या किसी भी चीज से, सॉइल से, है ना, वो डिकम्पोज कर रहा है. यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं था. क्ले फिगरीन्स ऑफ मदर गॉडेस, जो मदर गॉडेस मैंने दिखाया उसकी भी क्ले फिगरीन यहाँ से मिलती है हमको. टॉय प्लॉ मिला है बनावली. ये देखो टॉय प्लॉ, ये चीज इंपॉर्टेंट है. टॉय प्लॉ मतलब कि टेराकोटा प्लॉ, टेराकोटा से बना हुआ प्लॉ मिला है हमको. हल. हाँ. देन 8 शेप्ड जार मिले हैं. कुकिंग वेसल्स एटसेट्रा हैव बीन फाउंड. ठीक है. देन टॉकिंग अबाउट द धोलावीरा. धोलावीरा इज द सेकंड लार्जेस्ट हड़प्पन साइट. इसको भी देख ही लेते हैं, धोलावीरा बनावली. धोलावीरा की बात करी थी ना, रन का टर्न क्वेश्चन धोलावीरा. ठीक है. चलो. धोलावीरा इज द सेकंड लार्जेस्ट हड़प्पा साइट आफ्टर राखीगढ़ी, हरियाणा. ठीक है. राखीगढ़ी तो लार्जेस्ट हड़प्पन साइट क्या है? राखीगढ़ी है. राखीगढ़ी कहाँ? हरियाणा. हरियाणा में दिस इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है. दिस इज एन एमसीक्यू. ठीक है. वैसे सेकंड लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है धोलावीरा. ठीक है. लोकेटेड इन रन ऑफ कच्छ. इट्स यूनिक फीचर इज दैट इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ये हमने बात करी है. ठीक है ना. इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वैसे हर जगह दो टाउन्स होते थे, मतलब जो टाउन था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, दैट इज लोअर टाउन एंड सिट्राडिल. ठीक है. बट धोलावीरा वाज एन एक्सेप्शन एंड इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. दैट वाज, देयर वाज अ मिडिल टाउन एज वेल, है ना. तो इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, सिट्राडिल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन. ठीक है. पीपल ऑफ धोलावीरा वर फेमिलियर विद एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम. पीपल यूज टू स्टोर वाटर इन रिजर्वोयर्स बाय बिल्डिंग डैम. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पीपल यहाँ के पीपल क्या थे, इनको वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मालूम था. वाटर मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है ना. चलो, मूविंग फर्दर. अचीवमेंट्स पे आ जाते हैं. आप एक मिनट. हाँ. चलो. तो अचीवमेंट्स पे आ जाते हैं कि हड़प्पन कल्चर के क्या क्या अचीवमेंट्स थे. तो हड़प्पन कल्चर के अचीवमेंट्स हमको 4 हेड में, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 4 हेड्स. दैट इज इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट एंड रिलीजियस एस्पेक्ट. ठीक है. चलो. तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करते हैं. तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, since Harappan culture was based on non-agricultural activities, therefore they were dependent upon their nearby villages to supply them with both food and non-food crops to the urban centers, okay, such as wheat, barley, rice, cotton. ये सब सप्लाई करते थे. ठीक है. डिपेंडेंट थे अपने नियर बाय विलेजेस पे. देन हड़प्पन्स ऑल्सो प्रैक्टिस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, है ना, सच एज शीप्स, गोट्स हो गए, कैमल्स एक्सेट्रा. इन सबको लोगों ने डोमेस्टिकेट भी किया, हड़प्पन ने डोमेस्टिकेट किया. हाउएवर, जो कि मैंने पहले बात करी ना कि काउ एंड हॉर्स के हमको एविडेंसेस या रिमेन्स और एविडेंसेस, एनीथिंग वी हैवंट गॉट फ्रॉम हड़प्पन कल्चर. ओके. हड़प्पन्स वर एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एज वेल. ये हमको कहां से मालूम पड़ता है? ये हमको मालूम पड़ता है बाय द यूज ऑफ द कॉटन, राइट, टू मैन्युफैक्चर द टेक्सटाइल्स, as referred by Greek authors as सिंधो इंडस्ट्री. सिंधो ना, ग्रीक लोगों ने क्या बोला था? दैट कॉटन इंडस्ट्री, अपने यहाँ की कॉटन इंडस्ट्री को उन्होंने क्या नाम दिया? इट इज द सिंधो इंडस्ट्री. सिंधो, सिंधो मतलब derived from which is derived from सिंध. ठीक है ना. एंड दिस वाज अ कॉटन इंडस्ट्री. दिस वाज अ कॉटन इंडस्ट्री. ठीक है.
तो इससे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व थे भैया, इससे हमको ये भी मालूम पड़ता। ग्रीक एविडेंसेस हैं हमारे पास, ग्रीक फैक्ट्स हैं। और व्हाट वाज द कॉटन इंडस्ट्री ऑफ इंडिया नोन एज, इट वाज नोन एज द सिंधु इंडस्ट्री। ठीक है। देन हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स लाइक जेम्स एंड ज्वेलरीज, टेराकोटा फिगरिन्स एंड पॉटरीज वर आल्सो एक्सपोर्टेड आउटसाइड, है ना, एंड ऑल्सो सोल्ड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एज वेल। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हम क्या ले लें कि शॉटोघाई एक जगह है, शॉटोघाई अफगानिस्तान में एक जगह जगह है। शॉटोघाई कहाँ है? अफगानिस्तान में है ना। तो व्हाट वाज देयर, वहां पे हमको क्या मिला? वहां पे हमको लापिस लूजली मिला है। मतलब कई सारे प्रेशियस स्टोन्स मिले हैं, एक लापिस लूजली मैंने फोटो लगा रखी है, तो मैं वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो, प्रेशियस सेमी प्रेशियस स्टोन्स काफी मिले। दिस इज लापिस लूजली, ब्लू कलर का, बढ़िया है ना। तो ये हमको मिला है शॉटोगाई से, लापिस लूजली मिला है हमको, एगेट मिला है हमको, जेड मिला है। ये सब सेमी प्रेशियस प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं। ठीक है। और ये सब हमको सेंट्रल एशिया से मिले हैं। ठीक है ना। चलो, ठीक है। देन द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ हड़प्पन वाज बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम लोथल डॉकयार्ड। ये तुमने पढ़ा है कि लोथल था जो डॉकयार्ड था सबसे बड़ा, एंड वहां से इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंडक्ट होना चालू था। ट्रेड हमारे थे, हमारे जो है जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थे उनके साथ ट्रेड थे, है ना। लोथल में तो एक स्ट्रीट भी थी, बाजार स्ट्रीट की, जिसकी डिस्कवरी हुई थी बाय मिस्टर एस आर राव, है ना, उन जिन्होंने एक्सकवेट किया था, विच वाज कॉल्ड एज बाजार स्ट्रीट। लोथल में मिली थी हमको, है ना। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि धोलावीरा, है ना, धोलावीरा में था, ये देखो, धोलावीरा एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट था इनके पास, है ना। पीपल यूज टू स्टोर वाटर इन रिजर्वायर्स एंड बिल्डिंग डैम्स। ठीक है ना, विच इंडिकेटेड देयर सेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है ना। और Harappans also had a better sense of food storages as well. Therefore, food granaries or the great granaries have been found from all over the major Harappan towns. ठीक है ना। तो ये सब इकोनॉमिक एस्पेक्ट में आ जाएगा। चलो, मूविंग फर्दर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया। देन टॉकिंग अबाउट द सोशल एस्पेक्ट। ठीक है ना। तो सोशल एस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? सोशल एस्पेक्ट में ये हो गया, समझ लो कि जो है सोशल एस्पेक्ट में पहले तो ये जानो कि जो है जो हड़प्पन रेस थी, जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, उन्होंने हड़प्पन सोसाइटी को चार पार्ट में क्लासिफाई किया, चार रेसेस में। ठीक है ना। चार रेसेस, कौन कौन सी रेसेस थी? पहली थी मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन। सेकंड थी मोंगोलॉइड्स, मोंगोलॉइड्स। थर्ड थी प्रोटो एस्ट्रोलॉइड्स, है ना। और फोर्थ थी एल्पाइंस। ठीक है। तो वेस्टर्न स्कॉलर्स ने इन चार रेसेस में हमको डिवाइड किया हड़प्पन्स को। ठीक है। हाउएवर दिस रेशियल डिस्क्रिप्शन लैक्स साइंटिफिक स्टडी विच इज बीइंग कंडक्टेड अंडर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर रहा है उसमें एक रिसर्च कंडक्ट चल रही है, अभी भी चल रही है। ठीक है। तो ये एक साइंटिफिक कोई साइंटिफिक स्टडी लैक कर रही थी ये डिस्क्रिप्शन। ठीक है। देयरफॉर दिस ओपिनियन ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर्स इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मॉडर्न हिस्टोरियंस। ठीक है। चलो, ओके। नाउ देखो, सोशल एस्पेक्ट हम ये बात कर सकते हैं कि सोशल इनइक्वालिटी वाज प्रैक्टिस्ड बाय द हड़प्पन्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक स्टेटस। कैसे हमको मालूम पड़ता है? हमको जो टाउन की प्लानिंग है उससे मालूम पड़ता है कि सिट्राडल है, सिट्राडल देखो ऊंचे पे है, बड़ा है, उसके नीचे लोअर टाउन है। अब जाहिर सी बात है, जो ऊंचे बड़ा है वहां पे जो है प्रीस्टली क्लास सोसाइटी, हाईली क्लास सोसाइटी, है ना, जो कहते हैं ना वीआईपीज, ये लोग रहते होंगे वहां पे। लोअर टाउन में नॉर्मल पीपल रह रहे हैं, लेबरर्स रह रहे हैं, रोज की मजदूरी करने वाले रह रहे हैं, है ना। नॉर्मल जो बाजार और ये सब करने वाले ट्रेडर्स, मर्चेंट, जैसे जो हमको दो वहाँ पे थ्री टाउन्स मिले हैं, है ना, जो हमको मिडिल लेयर भी मिली है, वो क्या कहा गया, वो ट्रेडर्स की रही होगी, इसलिए वो मिडिल टाउन है वो। ठीक है। बिकॉज वहां से जो है उसके बाद फिर लोथल गुजरात में मिली है, लोथल की तरफ जाना होता है तो लोग ट्रेड करते हैं, इसलिए वहां मिडिल टाउन भी है। लोग आते जाते, या फॉर एग्जाम्पल जो ट्रैवलर्स हैं वो रहते होंगे वहां पे, है ना। तो वैसे ही
The social inequality was practiced by the Harappans based on the economic status. Therefore, the elite class was living inside citadel and the commoners were living in the lower town. Moreover, Harappan culture practiced slavery as well. Hence, more slave quarters near granaries have been located in Harappan towns. Okay. The position of women uh, was respectable. कैसे हम बोल सकते हैं ये? हम जैसे हमको मदर गॉडेस फिगरिन मिली है ना? तो मदर गॉडेस वर्शिप्ड बाय हरप्पन्स, ठीक है ना? कालीबंगन से मिली थी ना, और मदर गॉडेस की फिगरिंग यहाँ से मिली, मोहनजोदारो से मिली है, ठीक है? तो दिस कैन जब भैया पूजा ही हो रही है तो जाहिर सी बात है कि मदर मतलब जो स्टेटस होगा वो भी रिस्पेक्टेबल रहा होगा। देन हमको ज्वेलरीज मिली हैं, हमको ये सब मिला है, तो इससे मतलब कि जो है दी जाती होगी, रिस्पेक्ट दी जाती होगी वुमेन को, है ना? उनकी मनोकामनाएं, उनकी इच्छाएं पूरी की जाती होंगी। देन टू उनका हमको इतनी ज्वेलरीज मिली हो, ये सब मिला है। देन हमको जो डांसिंग गर्ल स्टैचू मिला है वो देखो कितना एम्ब्रॉयडर्ड है पूरा, वो उसकी ज्वेलरीज हम देख सकते हैं और ये सब देख सकते हैं, है ना? तो क्या कहते हैं, डांसिंग गर्ल स्टैचू से तो हमको ये भी मालूम पड़ता है कि भैया प्रोफेशंस, अलग अलग प्रोफेशंस में भी क्या पता जो लेडीज थी या जो वुमेन्स थी वो अलग अलग प्रोफेशंस में भी काम करती थी। तो एक ये सब देख सकते हैं कि लिबर्टी थी उनके पास, है ना? तो एक वुमेन की जो प्लेस थी दैट वाज ऑन अ रिस्पेक्टेबल पार्ट, ठीक है ना? और एक और चीज हम लोग ये कह सकते हैं कि भैया अगर द ग्रेट मतलब जो हमने बात करी ना कि दे वर हैविंग अ वेरी मच ग्रेट सेंस ऑफ हाइजीन, तो अ ग्रेट सेंस ऑफ हाइजीन एंड क्लीनलीनेस इजंट पॉसिबल विदाउट वुमेन्स, आई थिंक सो। एक ये भी रीजन हो सकता है ना? देन सोशल एस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, बात कर लेंगे कि मतलब कि जो द हरप्पन सोसाइटी which had the knowledge of art of writing based on the Bostophodon style with the use of pictographic script, and most likely they were using the Brahmi language to communicate with each other. Bostophodon style, and ये तो मैंने आपको बताया ही ना, अभी चलो दिखा भी देते हैं। ये देखो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट एंड पोस्टोफोटोन स्टाइल, ये देखो, है ना? कैसे जा रहा है, ऐसे है, फिर ये देखो ऐसे लिखा है, फिर ऐसे लिखा है। स्क्रिप्ट देखो, स्क्रिप्ट देखो क्या है, ये सब पिक्चर्स ही तो है एक हिसाब से, सिंबल्स पिक्चर्स है ना, पिक्टोग्राफिक है पूरा। अब हमको क्या मालूम कि क्या मतलब है, मतलब ये तो पोस्टोफोटोन स्टाइल, स्टाइल तो ये है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मतलब जिसमें पिक्चर्स होती हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे, ठीक है ना? अब हमारा क्या हो गया, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हो गया, सोशल एस्पेक्ट हो गया, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे आते हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बात करते हैं, वेट अ सेकंड। Political aspect में जब बात करते हैं, then we need to say that according to some scholars, either priestly or mercantile community may have been the political head of the Harappan civilization. कहाँ से हमको मालूम पड़ता है, हमको वही द bearded priest से मालूम पड़ता है ना? जो मैंने पिक्चर दिखाई थी द bearded priest की, उससे मालूम पड़ता है। Discovered, which was discovered from the Mohenjo-daro, है ना? Has been claimed by Sir John Marshall as the chief priest of the Harappan civilization, who was also the political head of the Harappan civilization. Okay. However, what we can say that merchants were more concerned about commerce या ट्रेड देन कॉन्क्वेस्ट्स, है ना? लड़ाई झगड़ा, उससे ज्यादा उनको ट्रेड से मतलब था, कॉमर्स से मतलब था, ट्रेड एंड कॉमर्स। सो इसीलिए हमको क्या पता एक ये रीजन हो जिसकी वजह से हमको हमको जो है वेपन्स के कोई भी नामो निशान या वेपन्स के कोई भी एविडेंसेस हमको हड़प्पन साइट से अभी तक नहीं मिले हैं, ठीक है? ये हो गई पॉलिटिकल एस्पेक्ट की बात। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में, ठीक है? So, according to Sir John Marshall, the scene of a yogic posture male deity surrounded by wild animals such as rhino, buffalo, tiger, elephant indicates the worshipping of Lord Pashupati, understood to be proto Shiva cult of Hinduism, है ना? पशुपति सील याद होगी, दिखाई थी मैंने अभी, मोहनजोदारो से इसके भी एविडेंसेस मिले थे हमको। ये देखो पशुपति सील, योगिक पोस्चर में शिवा शिवा बैठे हुए हैं, चार एनिमल्स थे मैंने बताया था ना। ये देखो राइनो, सिंग है इसके, राइनो, बफलो, एलिफेंट, लायन या टाइगर कह लो, है ना? नीचे भी मुझे लगता है एनिमल्स ही हैं, बट बैकग्राउंड में क्या एनिमल्स हैं ये बात हो रही है, ठीक है? चलो, है ना? तो पशुपति सील मिली हमको दो की, जो कि विच इज अंडरस्टूड टू बी द शिवा, ओके?
Then similarly, the images of mother goddess discovered from the Harappan site indicate the cult of worshipping female deities, है ना, और the Shakti cult in Hinduism, है ना, जैसे वो शैविज्म था इन हिंदुइज्म में शिवा के पूजा को उपासक को क्या कहते हैं, इट इज नोन एज शैवाइट्स, है ना, शक्ति कल्ट, जो शक्ति के पूजक होते हैं, माता रानी के पूजक होते हैं, उनको शक्ति कल्ट में डाला जाता है हिंदुइज्म के। तो ऐसे हमको मदर गॉडेस की भी प्रतिमा मिली है, हमको स्टैचू मिला है, उससे हमको क्या मालूम पड़ता है कि फीमेल डिटीज की भी पूजा होती थी। Then the rituals performed by the Harappans continued to present day without the breakdown due to the coexistence of many cultures together in the Indian subcontinent. जैसे क्या, जैसे जैसे हमको फायर ऑल्टार्स मिले हैं, है ना, फायर ऑल्टार्स आज भी यूज होते हैं, हवन और ये सब आज भी होता है फायर ऑल्टार्स। देन जैसे हमको क्या कहते हैं, जो जैसे इनका जो द ग्रेट बात होता था, कोई भी रिचुअलिस्टिक या पायस काम करने से पहले लोग द ग्रेट बात में नहाते थे या हाथ पैर धोते थे, वैसे ही आज हम भी गंगा में बात बेद करते हैं, है ना, नहाते हैं या अपने पाप उतारने के लिए गंगा में डुबकी लगाते हैं, है ना। तो ऐसे ये सब आज भी चला आ रहा है, ठीक है ना। Then Harappans also used to worship various trees and animals, है ना, like people tree, khejari, shami trees, animals like snakes, है ना, टाइगर, जैसे प्रोटो शिवा, शिवा जो पशुपति सील है उसके पीछे देखो 4 एनिमल्स हैं, है ना। देन स्नेक्स, स्नेक्स को तो आज भी हम पूछते हैं नाग पंचमी के दिन एंड ऑल, है ना। तो ये सब, तो ये बात होगी पूरी रिलीजियस एस्पेक्ट के बारे में, ठीक है। अचीवमेंट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन यहाँ पे खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये पूरा। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। चलो अब ये आता है मेन पोर्शन, दैट इज द डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन। वेट सेकंड, नहीं एक्चुअली यार मैं माइक चेक करता रहता हूँ। पिछली बार मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करी एंड आधे उसमें माइक बंद हो गया था और मैं पूरी रिकॉर्ड करके बैठा हूँ। चलो तो बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो according to various thinkers, there are different opinions about the decline of the Harappan civilization. That is climate change condition. कुछ कहते हैं climate change condition के साथ decline हुआ, कुछ कहते हैं dryness of the rivers leading to decline of the resources, है ना, कुछ कहते हैं flooding of the rivers leading to the desertion of the urban areas, लोग छोड़ के चले गए, flooding हो गई, है ना, earthquakes आ गए, rock faulting हो गई, tremor, है ना। then या earthquake की वजह से river ने अपने directions बदल लिए। then population growth, stress on the resources, अब जाहिर सी बात है population growth, population बढ़ेगी, resources तो उतने ही है, रिसोर्स स्ट्रेस हुआ होगा, है ना, जिसकी वजह से वाइबल नहीं हुआ होगा उनके लिए। एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, देखो आर्यन इन्वेजन थ्योरी, इस पे हम बात करेंगे अच्छे से, जो कि मैंने याद करो, मैंने आपको कहा था कि वो जो मैं मैप दिखा रहा था तो मैंने कहा था ये टाइमलाइन याद रखना, वो काम आएगी यहाँ पे आर्यन इन्वेजन थ्योरी में, ठीक है। एक हिसाब से बेसिकली अगर देखा जाए तो वेस्टर्न प्रोपोगंडा भी था। चलो बात करेंगे उसके बारे में। चलो तो चालू करते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न हिस्टोरियंस बाय 1800 BCE the word Meluha was deserted in the Mesopotamian records. Therefore, from 1900 BC onwards, Harappan culture may have started facing the challenges of their existence in Indian subcontinent. Okay? जैसे मैंने बात बताया था, ये आपको जो मैं बता रहा था मेलुहा के बारे में, किंग ऑफ अक्कड़, सारगांव उनका इंस्क्रिप्शन मिला था, ठीक है ना। तो मेलुहा की बात, फिर ये देखो 1800 BC के अराउंड फिर वहां के जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं हमको मेसोपोटामिया के, उनमें मेलुहा का जिक्र खत्म होने लगा है। तो इससे हमको क्या मालूम पड़ा, इससे हमको ये मालूम पड़ा कि भैया कुछ ना कुछ तो रहा होगा जिससे वहां का डिक्लाइन हुआ, ठीक है। एंड डिक्लाइन की वजह से अब इंस्क्रिप्शन में बात होना बंद हो गई, मतलब कि ट्रेड बंद हो गई, सीधी सी बात है, तभी तो बात होना बंद हो गई, है ना। तो क्या रहा होगा, क्लाइमेट चेंज कंडीशन कैसे रही होंगी कि हरप्पन्स वर एंगेज्ड इन अ मैसिव डिफोरेस्टेशन एक्सरसाइज फॉर अबाउट hundreds of years, है ना, which adversely impacted the pattern of the rainfall in the part of the land, which created a difficult situations for Harappans to survive in the urban areas, है ना। क्लाइमेटिक चेंज कंडीशन यही होगी कि डिफोरेस्टेशन हुआ, है ना, क्या हुआ, डिफोरेस्टेशन हुआ। अब डिफोरेस्टेशन हुआ, डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या हुआ, रेनफॉल पैटर्न में चेंज हुआ, है ना, और रेनफॉल पैटर्न में चेंज हुआ, उससे क्या हुआ, उससे भैया क्लाइमेट चेंज हुआ, सीधी सी बात है, सूखा पड़ने लगा, या जो रिवर्स बह रही हैं या जो स्ट्रीम्स बह रही हैं उसमें पानी होना बंद हो गया, है ना, क्लाइमेट चेंज कंडीशंस हुए। चलो ठीक है, मूविंग फर्दर, अब आगे बात करें तो ड्राइनेस ऑफ द रिवर्स लीडिंग टू द डिक्लाइन ऑफ द रिसोर्सेज, इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब वो तो हमने ऊपर पहले वाले पॉइंट पढ़ा, तो ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस या क्लाइमेटिक चेंज फैक्टर्स द रिवर वाटर ऑल्सो गॉट अफेक्टेड, ये तो सीधी सी बात है, इंटर रिलेटेड ये दोनों, है ना,
सीधी सी। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है कि हम जानते हैं ना, सरस्वती, सरस्वती सूख गई है, गायब हो गई, हम कहते हैं, तो ड्राइनेस ऑफ द सरस्वती रिवर, सरस्वती रिवर को क्या कहा गया है, कौन सी रिवर बेड है वो, दैट इज द रिवर बेड ऑफ रिवर घग्गर हाकरा, ये रिवर का नाम है, ठीक है ना। सरस्वती रिवर इज नोन एज रिवर घग्गर हाकरा बेड, दिस इज रिवर घग्गर हाकरा, ठीक है। तो रिवर घग्गर हाकरा गॉट कंप्लीटली ड्राइड अप। Mohenjo-daro was located in the area of Naklistan of Sindh, but today it is completely dried up and arid zone due to the climate change in the climatic conditions. Therefore, अब रिवर सूख रही है तो क्या होगा, डिक्लाइन ऑफ रिसोर्सेज मस्ट हैव पुश्ड द पीपल टू माइग्रेट टू द अदर नेबरिंग एरियाज, है ना। चलो ठीक है, तो क्या हुआ, क्लाइमेटिक चेंज कंडीशन हो गया, ड्राइनेस ऑफ द रिवर हमने देख लिया, देन फ्लडिंग ऑफ द रिवर्स लीडिंग टू द डेजर्शन ऑफ द अर्बन एरियाज। मतलब ये है कि John Marshall, according to Sir John Marshall and Mr. S.R. Rao, there are evidences of flooding of many cities of Harappa due to the shifting in the river course, such as Indus, which flooded Mohenjo-daro and Chanduraho twice. इंडस ने अपना रिवर बेड चेंज किया, अपना पैटर्न चेंज किया, उसने मोहनजोदारो और चंदुराहो को दो दो बार जो है फ्लड लाया था वहां पे, है ना। तो ऐसे ही हो सकता है कि रिवर ने शिफ्ट कोर्स चेंज किया, जिसकी वजह से फ्लडिंग हुई या लोगों को सूखा पड़ गया, लोगों को जो है लोग वाटर रिसोर्स से दूर हो गए, जिसकी वजह से दिक्कतें हुई, डिक्लाइन हुआ होगा, है ना। चलो फोर्थ पॉइंट आते हैं, अर्थक्वेक, रॉक फॉल्टिंग, ट्रेमर्स। अब से ऊपर हमने पॉइंट पढ़ा, रिवर ने कोर्स चेंज किया, रिवर कोर्स कैसे चेंज करेगी, नीचे टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, कोई अर्थ के नीचे टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ, है ना, या रॉक फॉल्टिंग हुई, या ट्रेमर हुआ, या एक बड़ा सा पत्थर गिर गया, कुछ अर्थक्वेक आया और बड़ा सा खूब सारा मलबा या खूब बड़े से पत्थर गिर गया, उन्होंने रिवर को बंद कर दिया, रिवर का जो माउथ था या जो रास्ता था वो बंद कर दिया। अब रिवर, सीधी सी बात है, पानी रुकेगा तो है नहीं, पानी एक दूसरा रास्ता बनाएगा, तो उसने रिवर ने कोर्स चेंज कर लिया अपना, है ना। तो द टेक्टोनिक शिफ्ट ऑल्सो प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिजर्शन ऑफ अर्बन एरियाज इन हरप्पा। एग्जाम्पल है सहवान। सहवान एक जगह है, which has shown the evidence of rock faulting, which according to scholars diverted the flow of Satluj and Yamuna in opposite direction. समझ रहे हो ना कि, और ये जो सतलज और यमुना, इनके जो सहवान में रॉक फॉल्टिंग हुई थी, इन्होंने क्या किया, इसने क्या किया था, इसने सतलज और यमुना का जो फ्लो था, जो उसने उसको डाइवर्ट कर दिया, और जब वो डाइवर्ट हो गया तो जो ये घग्गर हाकरा रिवर थी, है ना, जो ये घग्गर हाकरा रिवर थी, इसमें सप्लाई बेसिकली इन रिवर से भी आता था, है ना। और जब इनका ही फ्लो डाइवर्ट हो गया तो ये जो घग्गर हाकरा रिवर में सप्लाई आता था, ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंशियंट रिवर सरस्वती, ठीक है, उसमें सप्लाई आना बंद हो गया, और उसमें भी क्या पता वाटर लेवल इस वजह से भी कम हुआ हो, ठीक है ना। देन टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ स्ट्रेस ऑन रिसोर्सेज, ये तो बहुत इजी है, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ स्ट्रेस ऑन रिसोर्सेज, सीधी सी बात है ना, कि the population growth of Harappan created a deep strain or stress on the available resources, है ना। तो सीधी सी बात है यार, वहां पे रिसोर्स स्ट्रेस जहां पे होगा वहां पे दिक्कतें होंगी, वहां से लोग जाएंगे दूसरी जगह फॉरवर्ड करेंगे, मूव आउट करेंगे, है ना। एग्जाम्पल जैसे मोहनजोदारो को ले लो, मोहनजोदारो हम लोग कहते हैं ना, कि कह सकते हैं कि कैपिटल रहा हो, क्या पता, ये हड़प्पा का। तो मोहनजोदारो वाज हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 35,000 एट वन टाइम, है ना, दैट वाज बियॉन्ड इट्स नेचुरल कैपेसिटी। तो दीज ऑल आर द रीजंस, है ना। चलो ये बात हो गई, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे, ठीक है। चलो चलो, तो आर्यन इन्वेजन थ्योरी की जब बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, आर्यन इन्वेजन थ्योरी इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल थ्योरी इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। एज आर्यन इन्वेजन थ्योरी, एज इट इज टू एक्सप्लेन द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना। चलो, मूविंग राम प्रसाद, सॉरी, मिस्टर राम प्रसाद चंद्र was the first scholar to give the opinion. However, he withdrew from this opinion immediately. But the Western scholar Mortimer Wheeler, important है, Western scholar Mortimer Wheeler and V. Gordon Child had propagated the Aryan invasion theory on the basis of the following observation. क्या क्या observation इन्होंने बताया, ठीक है, कि इन्होंने बोला, पहला ऑब्जर्वेशन था इनका कि इन ऋग्वेदा गॉड इंद्र इज रेफर्ड एज द पुरंदर,
इन्होंने कहा कि भैया ऋग्वेद में इंद्र भगवान है, इंद्र भगवान को बोला गया है कि इंद्र भगवान को पुरंदर की उपाधि दी गई है, पुरंदर। पुरंदर का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉयर ऑफ फॉल्ट्स, ये पुरंदर का मतलब होता है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ऋग्वेद में तो भैया गॉड इंद्र को पुरंदर बताया गया है, हु इज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स, एंड सिंस हड़प्पन्स यूज्ड टू लिव इन अ फोर्टिफाइड स्ट्रक्चर, देयरफॉर द हड़प्पन्स इन्वेडेड, देयरफॉर द आर्यंस इन्वेडेड विद द हेल्प ऑफ गॉड इंद्र। ठीक है, पहला पॉइंट इनका ये। चलो ठीक है, दूसरा पॉइंट सुनो। दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला, इन्होंने कहा कि डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन कल्चर पीपल नियर द साइट ऑफ हड़प्पा indicated the existence of an alien culture, non-Harappan culture that is, ठीक है। It shows conflict also between the Harappan culture and non-Harappan culture, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो है जहां पे डिस्कवरी हड़प्पन कल्चर की बात हुई, वहां पे ही हमको जो है एक नॉन हड़प्पन कल्चर भी मिला है, और ये हो सकता है, ये एक एविडेंस हो सकता है कि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया हो, ठीक है, बिटवीन द हड़प्पन एंड द नॉन हड़प्पन कल्चर पीपल एज वेल, ठीक है। चलो तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला, इन्होंने कहा कि देयर आर एविडेंसेस ऑल्सो ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ बार्बरिक कल्चर फ्रॉम सम साइट ऑफ द हड़प्पा। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा देयर इज सुपर इम्पोजिशन ऑफ सम अदर बार्बरिक कल्चर। बार्बरिक कल्चर मतलब कोई आया, कोई दूसरे कल्चर वाला आया है ना, उसने बार्बरिकता से उसने दबाया, मतलब एकदम कट्टरता, कोई कट्टर कल्चर रहा हो, कोई कट्टर कल्चर ही कह लो, कल्चर रहा होगा जिसने आके दबाया, और अगर नहीं माने, मतलब उसने अगर पहली बात है वही करने, उसने कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, नहीं करोगे तो मैं मार दूंगा, जिंदा नहीं रहोगे, सीधी चीज। दिस इज बार्बरिकनेस, है ना। दिस इज क्या कहते हैं उसको, रेडिकलिज्म, है ना, बार्बरिकज्म। तो ये चीज, तो इन्होंने कहा कि इसके भी एविडेंसेस मिले हमको। कहां से एविडेंसेस मिले हैं? जैसे हमने बात करी थी मोहनजोदारो, मोहनजोदारो हमने बात करी थी कि मोहनजोदारो इज नोन एज द माउंट ऑफ डेड, है ना, मरे वो का पहाड़, माउंट ऑफ डेड। तो वहां से हमको एविडेंसेस मिले हैं खूब सारे, मैंने कहा ना खूब सारे हमको स्केल्टन्स मिले हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे दफनाए हुए स्केल्टन जैसे मिले हैं, तो वहां से एविडेंसेस मिले हैं, तो वहां से उन्होंने ये रिलेट किया कि क्या पता है कोई और बारबरिक कल्चर आया हो और उसने जो है ऐसा ऐसा किया हो। अब उन्होंने कहा हो हमको, हम हमारी बात मानो नहीं तो मार देंगे, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानेंगे, उन्होंने सबको मार दिया, खत्म, एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। ये उन्होंने एक तीसरा ही रीजन दिया, ठीक है। चौथा रीजन दिया कि सिमिलरली इन चंदुराहो सम बारबेरिक एक्टिविटी वाज आल्सो, इज आल्सो नोटिफाइड, मतलब कि उनका चंदुराहो में भी एक वो है सिस्टम है, ठीक है। हाउएवर, नाउ अब बात करते हैं कि हाउएवर द आर्यन इन्वेजन थ्योरी हैज बीन रिजेक्टेड बाय मॉडर्न हिस्टोरियंस, ठीक है ना। व्हाई? बिकॉज the modern historians claim that there was no direct contact between the Harappans and the Rigvedic Aryans in the form of an invasion, because the earliest Aryans came to India was around 1400 BCE, ठीक है। जो अर्लीस्ट आर्यंस इंडिया में आए हैं वो 1400 बीसीई के अराउंड आए हैं, ठीक है। और हमने क्या बात करी थी? अभी देखो मैंने टाइमलाइन याद करने को कहा था ना, हमने क्या बात करी थी? हमने बात करी थी कि जो हड़प्पन्स का डिक्लाइन था वो जो है 1500 के आसपास, ये देखो, हड़प्पन्स गॉट एक्सटिंक्ट अराउंड 1500 बीसी, और जो अर्ली आर्यंस आए हैं वो 1400 बीसी में आए हैं, ठीक है। तो जब जब वो आर्यंस आए और बेसिकली लेट हड़प्पन, हड़प्पन का डिक्लाइन तो यहीं से चालू हो गया था ना, लेट हड़प्पन से यहां से डिक्लाइन चालू हुआ, यहां तक आता है तो फुल्ली एक्सटिंक्ट हो गए हैं वो, समझ रहे हो ना। तो जब तक वो आए हैं तब तक उसके पहले से तो उनका एक्सटिंक्शन धीमे धीमे चालू हो गया था हड़प्पन का, तो टाइमलाइन तो मैच ही नहीं खा रही है, तो कैसे हो सकता है ये? तो देयरफॉर, राइट, देयरफॉर द मॉडर्न historians believe that the Harappan culture, that the Harappan सिविलाइजेशन डिक्लाइंड बट नॉट देयर कल्चर, है ना, समझ रहे हो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भले डिक्लाइन हो गई लेकिन उनका कल्चर डिक्लाइन नहीं हुआ। उनका कल्चर क्या कर रहा था, वो साइड बाय साइड को एग्जिस्ट करता चला गया, पैरेलल कल्चर्स थे जो कि और कल्चर चल रहे, जैसे कि जब इंडिया में इधर नॉर्दर्न और नॉर्थ वेस्टर्न साइड ये पूरा हड़प्पन कल्चर और ये सब चल रहा था, उस टाइम पे जो हमारा पेनिनसुलर एरिया है वहां पे मेगालिथ कल्चर चल रहा था, न्यूलिथिक के साथ साथ, है ना। तो उन्होंने कहा कि भैया हड़प्पन सिविलाइजेशन भले डिक्लाइन हुई हो, मॉडर्न हिस्टोरियंस ने कहा, लेकिन हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन नहीं हुआ, वो जो है साइड बाय साइड चलता रहा अपने पैरेलल कल्चर्स के साथ साथ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, है ना। सच एज सच एज ओसीपी कल्चर कह लो या ऑर्क,
कलर्ड पॉटरी कल्चर, एक और पॉटरी कल्चर है, ऑर्क कलर पॉटरी कल्चर, है ना, chalcolithic culture, even the Neolithic culture as well, है ना. तो the Harappans found shelter through assimilation and acculturation. The Harappans culture survived in India. हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना. चलो, आई होप सो ये समझ में आया होगा अब आपको. इसके बाद हम लोग, चलो, थैंक यू. एंड होपफुली जितना शॉर्ट एंड क्रिस्प रख सकता था मैंने रखने की कोशिश की है. एंड होपफुली आपको समझ में आया होगा एंड इजी वे में समझाया होगा मैंने. नेक्स्ट अगर आप लोग ये अच्छा लगेगा आपको एंड ये, तो नेक्स्ट लेक्चर में वैदिक सिविलाइजेशन के ऊपर लेके आऊँगा जिसमें हम बात करेंगे वैदिक के बारे में. ठीक है, दैट इज, हम लोग वैदिक के बारे में जब बात करेंगे तो उसमें हम पूरा दोनों चीज़ के बारे में बात करेंगे. दैट इज, सॉरी, अर्ली वैदिक के बारे में भी एंड लेटर वैदिक के बारे में भी, दोनों चीज़ को हम कवर करेंगे. ठीक है, तो चलो नेक्स्ट उसमें मिलते हैं एंड विश यू ऑल द बेस्ट. एंड चलो, बाय बाय, टाटा, विश यू गॉड स्पीड. थैंक यू.